और इस समय मेरे साथ में जुड़ चुके हैं तमिलनाडु टीम के कोच जबिंद्रन वी. I would like to welcome you to the DD Sports. First of all, I would like to congratulate you that squash is happening for the first time at the Khelo India Youth Games. I'm so happy to be here in the Tamil Nadu team. This is the first time in Khelo India squash is happening. I'm so happy about that. All top ranking players in Tamil Nadu, they are playing the in Tamil Nadu team. I'm so happy. Jabindran, Tamil Nadu is too good in squash and we call it the hub for squash. How do you see your team, both men and women? Our team members are considering totally 10 members from Tamil Nadu. They are playing. Most of the players in top ranking in India. Example, Sandesh, top under 19, third in India, and Pooja Arti, she is also third in India. So most of the players is top ranking in India. They are doing good. In TV event, surely they will do good. You also have Pooja Arti, the top seeded in the squad. So are you looking for the title till this time at home? Yeah, for sure, for sure. She is trained well. She having the practice sections well. So for sure she will make the medal to the gold. That's my thing. Jabindran, yesterday you had a tough time against the players because Tamil Nadu, there were 5 players in individual event in both men and women. But yes, and now today is the team event is starting. What do you see? How do you see these matches? Yesterday, hard chances for all the team members. Sandesh lost in 5-setter. So that's he fought well. But okay, that's a day for him. Okay, we are starting very new today from today. So hoping we will get a gold in team events. Gold in team event. And interestingly, I just want to mention, Jabindran, yesterday I still have a hangover of that match between Tavneet and Sandesh for that 5-setter. And what do you say? Sandesh started a little bit clumsy. Then he back to the feet. He played well. He played well. He played his 100%. He made the dive. He put everything in the ground. Okay, hard chance. He lost, but in TV event he will do the best. Great to see him coming back against the top seeded in the tournament against Tavneet. He lost the first game and then he won second and third game and then lost again the fourth game. And it was great to watch 5 setters in a semi-final match. That's a good. Actually, that's a good match. After losing the first set, we are just telling him to start fresh, and we are motivating him to play good. And he also put his 100% in the court. So you have just mentioned that you're looking for a gold in a team event, and we have Tamil Nadu versus Rajasthan in the first semi-finals, and Shamina Riaz, she also lost yesterday's match. Deepika also lost. Ananya is also playing today. So how you see this team is going to be against Ritvika, Chavi and Yashi? We are not able to underestimate any players. So they also have a pretty good team. But our players, when we are comparing them, they are little, I think they are practice well. So we are expecting a good result from this. Our first seed, Pooja Arti, is not playing because she is playing semis. She is playing finals in the evening. So we are giving less for her. Then Shamina is leading the team. So for sure, Shamina will win and Deepika will also win. So straight away we will win the semis today. Big words coming from the coach that they're looking forward to the gold at this championship, and most important thing that squash is happening for the first time at Khelo India Youth Game. Congratulations that squash is making a debut at the event, and all the best for the matches. Thank you so much. तो यहाँ पर जो है हम इसके अलावा आपको बता दें कि ओवरऑल मेडल्स टैली जो है किस तरह से नज़र आ रही है जो इस खेलो इंडिया यूथ गेम्स की 6ठा संस्करण है और हर किसी की नज़र है कि अब 4 दिन के एक्शन के बाद जो है कौन सी टीम सबसे टॉप पोजीशन पे चल रही है. तमिलनाडु जो है टॉप पोजीशन पे 6 गोल्ड उन्होंने अपने अकाउंट में ऐड किए हैं. उनके पीछे चल रही है महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली और गुजरात. ये 5 टीम्स हैं जिनमें अभी 4 दिन के एक्शन के बाद में स्ट्रॉन्ग कंटेंशन देखने को मिल रहा है. खेलो इंडिया यूथ गेम्स इस समय हम यहाँ पर चेन्नई में जो स्क्वाश कोर्ट पर हैं और कल काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग जो है हमें देखने को मिला था स्क्वाश कोर्ट पे, जहाँ पे तमिलनाडु जो है 5 खिलाड़ी ऐसे थे स्क्वाश के जो तमिलनाडु से हैं, अपनी चुनौती रख रहे थे सेमी
सेमीफाइनल्स में, लेकिन फाइनल्स में जगह सिर्फ और सिर्फ पूजा आरती को मिली है। पर इंतजार कीजिएगा फाइनल्स का, क्योंकि कोच से हमारी बात हुई है, जबिंद्र ने मेंशन किया है कि दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू द गोल्ड एट होम, और ये सबसे बड़ी अच्छी चीज़ होगी, क्योंकि यहाँ पर जब कहते हैं ना कि जब कोई भी स्पोर्ट डेब्यू कर रहा हो तो इतिहास रचने का समय होता है। दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू राइटिंग अ स्टोरी ऑल्सो, राइट अ हिस्ट्री ऑल्सो एट चेन्नई। स्क्वॉश हमने पहले भी आपको बताया कि बहुत पॉपुलर स्पोर्ट है, और किसी भी होस्ट को जब मौका मिलता है कि अपनी सिटी में या फिर अपने राज्य में अगर कोई पॉपुलर स्पॉट हो या कोई फेमस स्पॉट हो तो उसे इंट्रोड्यूस करने का मौका दिया जाता है, और इसीलिए स्क्वॉश को जो है खेलो इंडिया यूथ गेम्स चेन्नई फ्यूचर इज हियर यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है। स्क्वॉश के लिए एक और खुशखबरी ये है कि बेशक 2024 के पेरिस ओलंपिक्स में इनको जगह ना मिली हो, लेकिन 2028 के लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में स्क्वॉश देखने को मिलेगा। बड़े बड़े नाम हमारे कंट्री में हैं, जहां पे जिक्र होता है दीपिका पल्लिकल कार्तिक का, साथ ही साथ जोशना चिनप्पा का, सौरभ घोषाल, साइरस पोंचा, और अभी नई जनरेशन जो नया स्क्वाड तैयार हो रहा है, पूजा आरती जो है ज़बरदस्त परफॉर्म कर रही हैं। चेन्नई से आती हैं, तमिलनाडु की लोकल गर्ल है, और सबकी नज़रें हैं कि पूजा आरती जो अपने घर पर जो है स्वर्ण पदक पर कब्जा करती ज़रूर नज़र आएगी। हमें बस इंतज़ार है आज के दिन के एक्शन का, क्योंकि सेमीफाइनल्स आपके लिए लाइंड अप है। सेमीफाइनल्स खेले जाएंगे, हम आपको एक बार फिर से याद दिला दें कि सेमीफाइनल्स खेले जाएंगे टीम इवेंट में, जहाँ पे टीम इवेंट में जो है 3-3 खिलाड़ी अपनी चुनौती रखेंगे, और बेस्ट ऑफ 3 का गेम है। अगर 2 खिलाड़ी अपने मैचेस जीत जाते हैं तो तीसरा गेम आप मिस कर सकते हैं। तमिलनाडु वर्सेस राजस्थान, द फर्स्ट सेमीफाइनल्स इन टीम इवेंट, और तमिलनाडु की टीम में नजर आएंगी शमीना रियाज, अनन्या नारायण और दीपिका। बेशक शमीना और दीपिका को इंडिविजुअल इवेंट में कल हार का वहाँ पे कह सकते हैं कि गर्ल्स सिंगल्स में जो उनको हार का सामना करना पड़ा था, थोड़ी सी निराशा हाथ लगी है। फाइनल्स में जाने का मौका उन्होंने गंवा दिया है इंडिविजुअल इवेंट में, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि तमिलनाडु टीम इवेंट में, गर्ल्स टीम इवेंट में जो है फाइनल्स तक ज़रूर पहुंचे। और जबिंद्रन ने भी मेंशन किया है कि वो सिर्फ और सिर्फ उनकी जो नज़रें हैं वो सिर्फ और सिर्फ गोल्ड मेडल पे हैं। और राजस्थान टीम में रितिका बुंदेला, छवि सरन और याशी जैन, ये 3 खिलाड़ी जो अपनी चुनौती रखेंगे इंडिविजुअल इवेंट में। याशी को और छवि को जो है हार का सामना करना पड़ा था, उन्हें क्वार्टर फाइनल से ही बाहर होना पड़ा था। तो बस अब आपका इंतज़ार समाप्त होता है, क्योंकि मैच की तैयारी हो चुकी है, खिलाड़ी जो है वार्म अप कर चुके हैं। द फर्स्ट सेमीफाइनल्स इन गर्ल्स टीम इवेंट इज लाइंड अप बिटवीन राजस्थान एंड तमिलनाडु, और होस्ट पूरी तरह से तैयार है राजस्थान को चुनौती देने के लिए। कॉमेंटेटर्स के पास ले जाने से पहले मैं आपको फिर से एक बार याद दिला, जो रेस है अब चौथे डे के एक्शन में, ये रेस है तमिलनाडु और महाराष्ट्र के बीच में, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मेडल्स टैली में दोनों के बीच में 2 गोल्ड का डिफरेंस है। तो क्या आज के दिन में कुछ और बदलेगा? गोल्ड ना आए, लेकिन क्या कोई और इंडिविजुअल मेडल उनकी किटी में ऐड होगा? इसका आप शाम तक इंतजार कीजिए। आज के दिन में स्क्वॉश से हम शुरुआत कर रहे हैं, बास्केटबॉल का एक्शन होगा, बॉक्सिंग आपको देखने को मिल सकती है, और सबसे इंटरेस्टिंग आज के डे में क्या होने वाला है? एथलेटिक्स, मदर ऑफ ऑल स्पोर्ट्स। आज शाम के सेशन में एथलेटिक्स की भी शुरुआत हो रही है। ट्रैक एंड फील्ड में भी जो ये खिलाड़ी हैं अपनी चुनौती रखते नजर आएंगे। 26 स्पोर्ट्स, 5600 एथलीट्स और 4 शहर इस खेलो इंडिया यूथ गेम्स की जो है होस्ट कर रहा है। छठा संस्करण, और तैयार रहिए स्क्वॉश के इस कोर्ट पे इस समय तैयार हैं हम सेमीफाइनल्स, गर्ल्स सेमीफाइनल्स में। और चलिए आपको ले चलती हूँ सीधा कमेंटेटर्स के पास, जहां पर है विकास कुमार और अक्षय मौर्य। ओवर टू कमेंटेटर्स। थैंक यू सो मच नीति, बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार, सुप्रभात आप सभी का। नेहरू पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इंडियन स्क्वैश एकेडमी के खूबसूरत एरिना से हम आप तक लाइव हैं, जहां गर्ल्स सेमीफाइनल्स अगर देखें टीम इवेंट में, एक तरफ रित्विका सिंह बुंदेला राजस्थान का प्रतिनिधित्व और दीपिका भी होम स्ट्रेट तमिलनाडु की तरफ से अपनी दावेदारी सुनिश्चित करेगी। फिलहाल स्वागत, अभिनंदन आप सभी खेल के चाहने वालों के लिए। डीडी स्पोर्ट्स पे शुरुआत हो चुकी है, और देखिए यहाँ पे 3 पॉइंट्स दीपिका भी अपने नाम की है, और बहुत ही ज़बरदस्त शुरुआत की है। मैं स्वागत करना चाहूँगा मेरे साथ ही मेरे बहुत अच्छे मित्र अक्षय का। अक्षय, बहुत ही खूबसूरत शुरुआत आज टीम इवेंट सेमीफाइनल की। Thank you, Vikas. Very good morning to all our viewers on Prasar Bharati and day 4 at the squash event.
My God, this is the day that we all had been waiting for, because the team events have their own attraction to the entire tournament. Of course, the individual events are fantastic, but this one team pitted against the other, and Deepika representing Tamil Nadu is up against Ritvika Bundela from Rajasthan. And mind you, with already 5 points in her kitty, Deepika, I really like the way she is playing. Now 6-1. And just a reminder to our viewers that Deepika had lost to Pooja Aarti from Tamil Nadu, from compatriot only, in the semi-finals yesterday. And now she would like to compensate for that, because this is what happens when you have actually, had a chance to go at the tournament trophy in the individual event, but you kind of, were complacent to see your compatriot do the thing. But in a team event, you have the chance, a bigger opportunity to win it for the team. And this is what makes it so beautiful, because I really like the fact that Deepika has come out all guns blazing. And the most important thing is that she is already 8-1. She's leading by such a big margin here. बिल्कुल अक्षय, क्या बेहतरीन शुरुआत दीपिका भी, ये बात करें दीपिका भी जो कि चेलम की रहने वाली हैं, इनके पिता भी कोच हैं और लो मिडिल क्लास फैमिली से आती हैं। 18th रैंक है इनकी इंडिया की, 18वीं रैंक है, 9 पॉइंट्स के साथ पहले सेट में। क्या सेंसेशनल शुरुआत, और देखें आप इनकी रीच का, इनका रिटर्न कमाल का। और अब गेम पॉइंट पे आ चुकी हैं 10-2। दीपिका भी, तमिलनाडु का डोमिनेशन रहा है, 5 मेडल पक्के कर चुके हैं। और जी हाँ, पहला सेट पलक झपकते मानो अपने नाम कर ली है। दीपिका भी बेहतरीन रिटर्न, शानदार तरीके से इन्होंने गेम प्लान, और सबसे अच्छी बात रीच कमाल की है। एग्रेसिव सोच के साथ उतरी है, आक्रामक तरीके से, ड्राइव हो, ड्रॉप हो, चाहे किल हो, लॉब हो, बैकहैंड पे, फोरहैंड पे, और ज़बरदस्त रीच। अक्षय, सबसे तेज तर्रार पहला सेट अभी तक के जितने स्क्वैश के मुकाबले हमने देखे हैं, सबसे कम समय में पहला सेट जीता है दीपिका वी ने। क्या ज़बरदस्त शुरुआत है ये। That's right. We are barely into this beginning of this semi-final, this team semi-finals in the girls category. And just as when we were only greeting our sports lovers on DD Sports here, they were just about settling down on their sofa or bedrooms just to enjoy this match. The first game has gotten over in a jiffy, and I really like the fact that kind of, that rush that Deepika has been able to induce in this semi-final, in this team semi-final here, with this 11-2 dominate in the game one. I think it's a great sign for the team semi-final. Nice morning to start with a good energy. बिल्कुल सही कहा, ये तमिलनाडु के खेल प्रेमियों के लिए स्क्वैश जो कि बड़ा सेंटर है, दीपिका पल्लिकल से लेकर के सौरभ घोषाल, और वो तमिलनाडु की नई पौध, एक नई जनरेशन। और दीपिका भी, जिनकी 18th रैंकिंग है इस वक्त इंडिया में, और बहुत ही निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से आती हैं, पिता कोच हैं। 9 साल की उम्र में दीपिका भी ने शुरुआत की थी। और अब दूसरे सेट में अगर बात करें, शुरुआत होती हुई दीपिका भी तमिलनाडु, और दूसरी तरफ ऋत्विका इस बुंदेला राजस्थान। फिलहाल सर्व करती हुई ऋत्विका पहला पॉइंट लेकर आई हैं इस समय, साइड वॉल से टकराकर जो बॉल है डिफ्लेक्ट हुई, और यहाँ से अगर देखें 1-1 पॉइंट्स, 1 ऑल। बहुत अच्छा रिटर्न इस समय, खूबसूरती से फ्रंट वॉल में बॉल टकराई। और देखिए, डीडी स्पोर्ट्स आज सुबह सबसे पहले स्क्वैश इवेंट आपके लिए लेकर आ रहे हैं। हमारे खेल प्रेमियों का स्वागत, अभिनंदन एक बार पुनः अक्षय। बहुत अच्छा पॉइंट, एक और जीत किया दीपिका भी का। देखिए आप, क्लास देखिए, कोर्ट कवरेज देखिए, अच्छे रिटर्न्स, और सबसे अहम बात, बहुत एग्रेसिव खेल रही हैं, पॉजिटिव एकदम अपनी मानसिकता के साथ। अक्षय, One of those rare mistakes by Deepika on that occasion. Couldn't get the touch strong enough from that return on the back wall. And on that occasion, Ritvika Singh Bondela falters. Charging in the front side of the court.
but couldn't come back enough in the backside of the court. This is the fear, this is the danger when you charge too much, this over-aggression, when you are using too much of the front court. You must always come back to the tee so that you are in a good position to cover any corner of the court. बिल्कुल, दीपिका भी जानी जाती हैं अपनी चपलता के लिए, अपने बेहतर रिटर्न के लिए, शानदार रीच के लिए। Already 5-3 Deepika in this game number 2. Just a little updation on the scorecard. We'll be seeing it very soon. There you go. Thanks to the graphics team here. Now at 6-3, Deepika is looking very strong even in game number 2. I mean, we are watching a team event here. We are watching a girls team semi-final, but it's such a strong individual feeling that I'm getting here that immediately she wants to wrap it up with this semi-final for her team. As far as her own contribution is concerned. There you see nice charging on the front court, and on that occasion challenging Deepika a little bit. बिल्कुल, इस सेट में जरूर थोड़ी सी चुनौती पेश कर रही हैं दीपिका के खिलाफ। अच्छी रीच से दूर रखा, ये इस खिलाड़ी की ताकत है। एक और पॉइंट अपने हिस्से में और अब सर्व करने के लिए। I really like the way Deepika changed the pace of that return. On that backhand, she controlled the pace of the return and just literally dropping shot in front of the court there. अक्षय, एक चीज और गौर करें, पूरी तरीके से असहज और अनबैलेंस कर दिया अपने प्रतिद्वंदी को। क्या जबरदस्त क्लास दिखा रही है फोरहैंड बैकहैंड पे दीपिका भी। भारतीय अभी स्क्वैश में अंडर 18 रैंकिंग। And such mistakes from Ritvika here, like hitting that one on the 10, it's not going to help her cause. She's already 7 ball points down in this game number 2, and I don't think, yeah, that's the way it is. Game number 2 also going in Deepika's favor with 11-3, and mind you, she is literally storming into semi-finals team event. बिल्कुल अक्षय, टीम इवेंट्स में कि तमिलनाडु के लिए बड़ी ही स्वर्णिम शुरुआत है। पहला गेम 11-2 से और दूसरा गेम 11-3 से। निरंतरता का क्या अद्भुत परिचय दिया इस खिलाड़ी ने। शानदार कौशल का, बेहतर रीच का, अच्छे स्किल दिखाई है। और दीपिका भी जानी जाती है, देख सकते हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पे 11-2 11-3 के अंतर से 2 गेम। शुरुआती स्क्वैश इस समय गर्ल्स इवेंट के सेमीफाइनल टीम इवेंट है। इसमें दोनों टीमों से, तमिलनाडु और राजस्थान से 3-3 प्लेयर पार्टिसिपेट करेंगे। सेमीफाइनल का बड़ा मुकाबला है। स्क्वैश पहली बार खेलो इंडिया में इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है। और आपको बताते चलें कि 5 मेडल्स ऑलरेडी पक्का कर चुकी है तमिलनाडु। तो कहीं ना कहीं एक बड़े बात करें, इसमें शुरुआत बहुत अच्छी की है। और ओवरऑल भी तमिलनाडु अभी शुरुआत खेलो इंडिया के 6ठे संस्करण में अक्षय काफ़ी ज़बरदस्त की है। और इनका स्थानीय खेल है जिसमें इनका डोमिनेशन है, तो बहुत कुछ मेडल्स की संभावनाएं हैं इस खेल से। Yes, I totally agree with you. We've been talking about constantly how squash individually has become like India as a country is the power center of squash now, and Chennai single-handedly has contributed immensely in making India such an epicenter of this amazing squash. That sport that it is. It's what a high adrenaline, high octane action, full of action this event is. Those two athletes taking back to the court here, and that one coming right onto the monitor. That's the feeling I get. I just love that angle. I always mention that angle of that camera which is placed on the service wall is the most beautiful angle of the broadcast. फिलहाल इसी बीच एक बूस्ट शॉट कितना खूबसूरत साइड वॉल से टकराकर फ्रंट वॉल में, और ऋत्विका सिंह बुंदेला के लिए बड़े अच्छे संकेत हैं। शुरुआत अच्छी की है ऋत्विका ने तीसरे सेट में। इनके लिए डू और डाई सेट है अक्षय। अगर यहाँ पे उनको कम बैक करनी होगी, 2 पॉइंट्स अर्जित की है। एक पॉजिटिव, एक सकारात्मक शुरुआत। अच्छी रैली। और ये देखिए, Yeah, this is what I was talking about. You know what? When Ritvika had the chance, she went all out and placed it very almost like an easy volley return for Deepika. But on the contrary, when Deepika had the chance, she dropped it so softly around the net that even when Ritvika was able to reach there, she couldn't really control the return, and that is what makes it so special for Deepika. That is why she's dominating this team semi-final here.
बिल्कुल अक्षय, क्या क्लास दिखाती हैं, क्या निपुणता, कौशल और प्रवीणता की एक अद्भुत झलक स्क्वैश खेल। इसी बीच देखिए एक और पॉइंट मिला है इस वक्त, अगर बात करें दीपिका भी तमिलनाडु के लिए सर्व करती हुई। And that point also, because has come because of Ritvika's unforced errors. And once again hitting on the tin, and she's allowing that kind of margin to Deepika. She's gonna take it away. She's gonna run away with this semi-final event. बिल्कुल इस तरीके की सामान्य गलतियों की आप अपेक्षा नहीं कर सकते कि आप अनफोर्स एरर करें। फिलहाल 3-3 की बराबरी, 3 ऑल। एक और पॉइंट यहाँ पे तारीफ काबिल इस वक्त अब सर्व करेंगी और ऋत्विका सिंह बुंदेला सर्व करने के लिए सर्विस बॉक्स से। बहुत खूबसूरत रैली तीसरे गेम में, एक बार फिर से वही क्लास दिखाया, क्या खूबसूरती से रिटर्न। और इस बार दीपिका के खिलाफ बहुत अच्छे ऋत्विका का रिटर्न था। For the first time, Vikas, we see in this team event of semi-finals here, Ritvika Singh Bondela is in lead in this game number 3, and that's a good sign. I mean, we got to see that. After all, we are playing at the semi-final level, and Ritvika is a brilliant player. I must say that she has put in the hard work. She's been playing this game for almost 8 or 9 years, and she's a very, very bright prospect for Rajasthan as well. So it's not like she's some kind of rookie with the racket. She's a very talented, she's a very hard-working girl. And now at 5-5, Deepika is looking for that opening which she was waiting for. Once again, a backhand going right into the 10. That mistake from Ritvika is going to be proving very fatal here, because if she doesn't really correct on that fault particularly and cut down on those unforced errors, as I said in the beginning, that Deepika is going to run away with this match. बिल्कुल बड़ी अच्छी बात है कि अपनी श्रेष्ठता से प्रतिद्वंदी को गलती करने पे विवश करना। देखिए आप पीछे चल रही थी 2 पॉइंट से, और अब यहाँ पे क्या ज़बरदस्त वापसी की लकीर लिखी है। तीसरा सेट निर्णायक है ऋत्विका बुंदेला के लिए। अच्छी रैली, काफ़ी अच्छी कोर्ट कवरेज पे तो रिटर्न, यहाँ गलती पे एक बार फिर से विवश किया। This is, she's not allowing Ritvika to settle down, and she always changes the game immediately. You talked about the court coverage. They were both on the left side of the court and straight away going for those return valleys, backhand drives there. But a champion like Deepika, she literally came with a boost and totally changed the angle of the game and compelled here Ritvika to change her side. एक बार फिर किया बेहतरीन प्लेसमेंट, एंगल्स का अच्छा उपयोग करके, और इस बार तारीफ करनी होगी ऋत्विका बुंदेला की। इस सेट में चुनौती दे रही हैं। फिलहाल यहाँ पे गलती की है और पॉइंट मिलेगा ऋत्विका को। ऋत्विका अब सर्व करने के लिए, ये सर्विस बॉक्स से आप देख सकते हैं फ्रंट वॉल से टकराई, रिटर्न अच्छा आया, एक बुस्ट शॉट एक बार फिर से। ये ताकत है, देखिए आप इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पे डीडी स्पोर्ट्स पे आप देख पा रहे हैं स्क्वैश का टीम इवेंट सेमीफाइनल, तमिलनाडु वर्सेस राजस्थान। तीसरा सेट, एक और खूबसूरत पॉइंट अक्षय। Once again, beautifully done there, but she was stationed there. She was already positioned there for her return, and that is the mistake that Ritvika has made. She has returned those volleys there where she's already present. Deepika doesn't really need to have move much, and she drops and changes the pace so beautifully, so delicately, so deceptively that Ritvika is just like a standard stranger there. और देखिए गेम पॉइंट पे हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे बहुत खूबसूरती के साथ गेम पॉइंट पे पहुँच चुकी है दीपिका भी, जो कि अभी हालांकि जो सर्विस है वो ऋत्विका के पास है। ज़बरदस्त मुकाबला, अच्छी रैली और तारीफ करनी होगी इस बार, क्या शानदार इस समय बैकहैंड रिटर्न। ये ताकत है ऋत्विका की, इस गेम में जानती हैं डू और डाई है, स्पेस बनाया, अच्छा रिटर्न आया और मैच अभी जीवंत रखा इन्होंने। For the first time, I saw Ritvika going for that little bit of anticipation, and that paid her well. And now, with 2 back-to-back points, she is only 1 point away from winning this game, and hopefully she holds on to her serve. A softer serve, relatively. I would call it a weak serve. Wow, once again, heading that one on the 10, and
that breaks the service, and 11-11 ties the score once again in this game number 3 in this semi-final of team event between Rajasthan and Tamil Nadu. वाकई में सेमीफाइनल इससे ज़बरदस्त क्या हो सकती है स्क्वैश की। स्किल देखिए, बेहतर टेक्निक्स देखिए, ड्राइव देखिए, ड्रॉप देखिए, कोर्ट कवरेज और ये ताकत इस खिलाड़ी की। क्या शानदार। अब इस समय दीपिका भी अब लीड में आ गई है 1 पॉइंट की। And this is it. That's it. It's all over for Ritvika Bundela. She has sealed this match comfortably in straight sets with this 13-11 margin. One has to say that she didn't really have much trouble because after winning those comfortable opening 2 games in this game number 3, Ritvika did provide some challenge. She did show some sparks of brilliance, but I believe that she should have taken those chances early in the match, early in this early couple of games there. Then probably the story could have been different. But nevertheless, Ritvika is saying today it wasn't her day. But Deepika, I'm sure after that semi-final loss in the singles girls category to her compatriot Pooja Aarti in straight sets, she has kind of taken a bit of a revenge here. And she's kind of settled her mental score, and winning this opening game in this team event with straight sets over Ritvika will definitely make her happy. बिल्कुल काफ़ी प्रसन्न होंगी। और देखिए मुकाबले की कहानी ये रही कि दीपिका भी तमिलनाडु के प्लेयर जो कि अभी भारत में स्क्वैश में 18वीं रैंकिंग है। बात करें दीपिका भी जिन्होंने पहला सेट अपने नाम की है गर्ल्स टीम इवेंट में चेलम करना। बात करें तमिलनाडु के रहने वाली, इनके पिता भी कोच हैं दीपिका के। और बहुत ज़बरदस्त प्रदर्शन 11-2, 11-3 और 13-11, यानी तीसरा सेट काफ़ी दिलचस्प रहा। नेहरू पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्क्वैश एकेडमी भारत की, जहां से हम सीधा प्रसारण डीडी स्पोर्ट्स पे आप तक लेकर के। और पहला गेम देखिए अगर अपने नाम किया है तमिलनाडु के प्लेयर ने, डोमिनेशन जारी रखी थी, शुरुआत काफ़ी पॉजिटिव की, अच्छे स्किल्स दिखाए। और अब टीम इवेंट में अगले जो प्लेयर हैं शमीना रियाज और यशी जैन। शमीना रियाज प्रतिनिधित्व कर रही तमिलनाडु की और यशी जैन राजस्थान की तरफ से। ये टीम इवेंट का दूसरा अगर बात करें, दोनों प्रतिभागी अपनी कौशल दिखाएंगे। जुड़े रहिए आप इसी तरीके से खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 6ठे संस्करण में। क्या खूबसूरत एक भारतीय परिप्रेक्ष्य में खेलों को तराशने की एक मुहिम है खेलो इंडिया, और भारत के प्रधानमंत्री की ये बहुत अच्छी सोच। और 6ठा संस्करण इस बार स्क्वैश शामिल हुआ है। और आप देख सकते हैं गर्ल्स सिंगल्स का ये टीम इवेंट सेमीफाइनल तमिलनाडु के लिए। शमीना रियाज, इनके फादर एक जाने माने हॉकी के प्लेयर हैं, लीजेंड्स हैं बात करें, और उनकी ये सुपुत्री हैं, खेल की परंपरा आगे बढ़ा रही है। और यशी जैन राजस्थान के अक्षय, ये भी एक बेहतरीन उभरती हुई प्लेयर हैं। और एक अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा हमारे व्यूवर्स को भी। स्क्वैश भारत का बड़ा अच्छा स्वर्णिम इतिहास रहा है। ये चेन्नई शहर 2007 में मेज़बानी कर चुका है स्क्वैश वर्ल्ड कप का। और यहाँ से चाहे भुवनेश्वरी कुमारी हो, चाहे बात करें ज्योत्सना चिन्नप्पा हो, या बात करें सौरभ घोषाल, बड़े प्लेयर्स दिया है इस शहर ने, या हरिंदर पाल सिंधु की बात करें जो कि अर्जुन अवार्डी। Oh yes, totally. I reckon that thing. I was just looking at the list of these national champions here. You mentioned Saurav Ghoshal. He was the national champion in 2004. And after that, in 2005, he was displaced by Ritvik Bhattacharya. But then he made a comeback of sorts in 2006. And from 6 onward to 7 till 2013, he was the undisputed national champion. And once again, that very talented Harinder Pal Singh Sandhu, who won the medal at Asian Games also. He was the one who won in 2014, but then Saurav Ghoshal again making a strong comeback in 15, 16 and 17, winning 3 consecutive national championships. And yes, talking about these wonderful 2 athletes here out there in the women's category, we're watching this semi-final between Tamil Nadu and Rajasthan, and representing Tamil Nadu is Shamina Riaz. Obviously, we watched her match yesterday when she was up against the Maharashtrian athlete. Unfortunately for Shamina, she had to kind of, settle down with a loss to her in the semi-final individual event, in which she, not in the straight sets, but she lost
the opening two sets. After that, winning the third set with 11-8. Shamina Riaz did try to make a comeback, but nevertheless, Nirupama Dubey was too good in the semi-final, and that kind of that feeling of loss, she would like to compensate for Shamina Riaz here, and would like to win this match against Yashi. Obviously, Yashi and Shamina both are equally talented. Riaz, you mentioned that her father, we all know, has been a legendary hockey player for India. Mohammad Riaz, who represented India at the 1995 and 2000 Olympics. And obviously, when you inherit such a rich sporting heritage, it really helps you. It develops that kind of temperament. Shamina Riaz on your TV screens, you can see. And obviously, as I mentioned, she would like to compensate for her individual loss in the semi-finals against the Maharashtrian Nirupama Dubey. But here, if she can win this one for her team, she would seal the team victory in the semi-finals. Shamina Riaz, who is up against Yashi Jain. बिल्कुल अक्षय, समीना रियाज के बारे में एक चीज़ और जानकारी दे दूं कि इनकी अभी रैंकिंग इंडिया में 6th है और ये इसी एकेडमी से निकली हैं जो भारतीय स्क्वैश एकेडमी है। और आपको बताते चलें कि 9 वर्ष की उम्र में इन्होंने शुरुआत की थी। समीना रियाज, इनके फादर, बिल्कुल सही कहा आपने, जो कि जाने माने हॉकी के एक बहुत ही महानतम प्लेयर रहे हैं और उस खेल की परंपरा को और समृद्ध कर रही हैं। 6th रैंकिंग है इनकी, चेन्नई की रहने वाली है, इसी एकेडमी से निकली है और 9 वर्ष की अवस्था में शुरुआत की थी इन्होंने स्क्वैश खेलना। तो एक बड़ा मुकाबला रहेगा, 2 प्रतिभावान खिलाड़ियाँ, प्लेयर्स आमने सामने हैं खिलाड़ी स्क्वैश के इस टीम इवेंट सेमीफाइनल में अक्षय। और बताना चाहेंगे यहाँ पे कि डीडी स्पोर्ट्स आज इन मुकाबलों का, और साथ ही साथ आप जुड़े रहिए बहुत सारे ऐसे खेलो इंडिया के प्रतिभावान खिलाड़ियों के लाइव एक्शंस, उनके खेल कौशल आप तक पहुँचाने के लिए। फिलहाल यह मुकाबला यशी जैन और समीना रियाज, एक बड़ा मैच रहेगा टीम इवेंट का। और अक्षय, मुझे लगता है दोनों काफ़ी कठिन चुनौती पेश करेंगे क्योंकि यशी जैन का भी प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है इससे पूर्व। Oh yes, so obviously whatever happened in the individual event, but when you represent your state as a team event, it's a different feeling altogether. You're almost like taking one for the team, and no individual would like to let down his or her state here. And Shamina Riaz opens her account with that beautiful drive along the side walls. Once again, a little unforced error. Couldn't judge the pace of the return from Shamina Riaz, and Yashi Jain dropping that one short in the backcourt. जी हाँ, शुरुआत बहुत अच्छी की है समीना रियाज ने। दोनों टीमों की खिलाड़ियों की तारीफ करनी होगी। यशी जैन भी 2 ऑल और मिस किया यहाँ पे। बात करें यशी जैन से, और अब समीना रियाज सर्व करने के लिए सर्विस बॉक्स से। समीना 3 पॉइंट पे हैं पहले सेट में। अच्छी कोर्ट कवरेज, बेहतर रीच और आगे आकर एक ड्रॉप शॉट। एक और पॉइंट मिलेगा क्योंकि टीम इवेंट में 3-3 प्लेयर प्रतिभागी अपने नज़र आएंगे। राजस्थान और तमिलनाडु का डोमिनेशन है। 5 मेडल ऑलरेडी पक्के कर चुके हैं। एक और पॉइंट, काफ़ी आगे आकर के ये रिटर्न देखने को मिला अक्षय, और दोनों प्लेयर काफ़ी सकारात्मक खेल रही हैं। देखिए आप, ज़बरदस्त इस समय एंगल का उपयोग करके फ्रंट वॉल से टकराई बॉल साइड वॉल से थोड़ी सी डिफ्लेक्ट होकर गई। सर्विस करेंगी इस वक्त यशी जैन। In this neck-to-neck opening game between Shamina Riaz and Yashi Jain is looking a little rusty here because in spite of the fact that she's been able to reach to the drop, but she's not been able to generate and connect that well as she would have liked. And at 5-5, as Shamina serves, nice boost generated by Shamina there, changing the angle of the volley. Oh, beautiful protection there. Lovely work done there by Yashi Jain. Brilliantly done. She almost foresaw that Shamina Riaz is charging the front court and producing a deep volley in the backcourt. Brilliantly done by Yashi. वाकई में यशी की जितनी तारीफ करे, क्या कमाल का फुटवर्क था, रीच कमाल की थी, रिटर्न देखने लायक बैकहैंड से। और यशी जैन 7 पॉइंट पे हैं, 5 पॉइंट्स पे शमीना।
सर्व कर रहे हैं यशी। बेहतरीन इस समय एक और हाफ बूस्ट शॉट खूबसूरती से साइड वॉल से टकराई, फ्रंट वॉल तक गई और एक और पॉइंट मिलेगा अब यशी जैन। 8-5 की बढ़त बना चुकी पहले सेट में। यशी जैन बहुत अच्छी चुनौती अनसेटल किया वहां पे, यही ताकत है इस खिलाड़ी की। और फिलहाल यशी जैन वापस अब सर्व करने के लिए। Unfortunately, I think Yashi became a little predictable here. She was trying to repeat that thing when she was, Shamina was stranded in deep of the court. And she should have gone for the drop there, probably. That delicate drop could have helped her fetch one more point. But as the scores are leveled in this opening game, in this team event semi-final between Rajasthan and Tamil Nadu. कमाल का यहाँ पे देखिए रिटर्न इतना बेहतर, रीच से दूर रखा अपने प्रतिद्वंदी के। और अब देखिए 9 पॉइंट्स पे आ चुकी हैं इस वक्त। बात करें समीना के खिलाफ यशी 1 पॉइंट अपनी दूर, अगर बात करें गेम पॉइंट से 9 ऑल। तारीफ करनी होगी समीना रियाज की। अब समीना आंख से आंख मिलाकर चुनौती दे रही है और वहां पे ऑफिशियल्स की हिदायत है वहां पे, क्योंकि कई बार होता है कि आपके जो एंगल ब्लॉक करते हैं सामने से बॉडी से आकर, तो प्रॉपर ऑफिशियल्स की निगाहें हैं जो हमारे कमेंट्री बॉक्स की दाहिनी तरफ। एक अच्छा बुस्ट शॉट, रिटर्न आया बैकहैंड से और यहाँ पे पॉइंट यशी जैन को। अक्षय यशी जैन पॉइंट लेकर आई है। समीना वापस बराबरी कर चुकी है, सर्व किया समीना ने। बहुत खूबसूरत रैली, ओ हो ये क्लास है, ये कौशल है अक्षय, कमाल का। पहले आगे गई, रीच का इस्तेमाल किया, रिटर्न देखने लायक पुश था। ये मुकाबला यहाँ से बहुत खूबसूरती से अपने नाम किया है समीना रियाज ने। रैंकिंग इनकी देखें, अभी स्क्वैश में 6th रैंकिंग है विमेंस में, और कौशल दिखाया। यशी लीड में थी, लेकिन समीना ने अपने बेहतर प्रदर्शन और क्या कमाल के क्लास दिखाकर ये गेम अपने नाम किया। पहला सेट अक्षय। There you see, score tells you the whole story. There is a little correction required in the score. It's not 11-10, it is 12-10 to Shamina. That is the score of the opening game. And one has to feel for Yashi Jain, because after that she was in the lead towards the later side of the game. She had the chance to seal this game for herself. But at 11-10, when Shamina leveled the score at 11-11, that's when she kind of lost the touch. But had she taken those couple of chances, had she not become a little predictable in her charging towards the court and not going for those drops, I think that's where Yashi Jain kind of lost this game. But I really hope that she comes back stronger in this second game. But Shamina Riaz, what a player. And we've been talking about her, and she's come out all guns blazing. She's literally, I can see that little aggression, that anger she felt after having lost in the semi-final against that Maharashtrian Anupama Dubey. Here she is taking no chances, that even when she was down 2 points, when Yashi was in the lead, she said, I'm not giving it to you that easy, baby. अच्छा, कहीं ना कहीं पहले सेट में बहुत अच्छी चुनौती पेश की थी यशी जैन ने और कई मौके पर लीड में थी, लेकिन कहते हैं वही प्रेशर को हैंडल करना, दबाव को कितना खूबसूरती से आप ऑब्जर्व करते हैं, और वो थोड़ी सी कमियां रही। और वहाँ पे समीना रियाज जो तमिलनाडु की लोकल गर्ल हैं, बेहतर खेल कौशल और शानदार प्रतिबद्धता दिखाई, अच्छी रीच थी, बेहतर कोर्ट कवरेज। और अब दूसरे सेट की शुरुआत हो रही है और दूसरे सेट में पहला पॉइंट यशी जैन ने सर्व कर रही है। आपके स्क्रीन पे यशी जैन हल्के से ब्लू कलर में है, येलो कलर में है समीना रियाज, और अच्छा बैकहैंड रिटर्न। और अब सर्व करेंगे समीना। 1 ऑल।
तारीफ करनी होगी। स्मैश देखिए कितना आगे आकर के फ्रंट कोर्ट में अक्षय स्मैश। This is what I like about Yashi, when she kind of becomes a little anticipation, when she saw that Shamina was a little stranded in the deep of the court, and she went for that hard-hitting, strong drive above head. And even though Shamina was able to go back in the deep of the court, but she couldn't connect it as well. But nevertheless, Shamina has leveled the score, and one more point to Yashi now, as she will be serving at 3-2. Oh, that's an unforced error. She was really unlucky. That is a miss. That would hurt her so more. The ball was literally coming back to her, but she kind of yorked herself. Unfortunately, these Yorker length returns are very difficult to predict, especially with the round edge of the racket. Sometimes it can really cross the racket like a tangent, like a comet passing a planet sometimes in the empirical setup. तारीफ करनी होगी, प्रशंसा के पात्र हैं समीना रियाज अपने बेहतर प्लान से, शानदार रीच से, बेहतर कोर्ट कवरेज, अच्छा रिटर्न्स और बेहतर सबसे अच्छी बात इनकी कि काफ़ी काम एंड कूल होकर खेल रही हैं, गलती करने पे विवश कर रही है। यशी जैन रिटर्न में कई बार गलतियां हुई है और कहीं ना कहीं थोड़ा सा असहज कर दिया उन्हें अपने आक्रामक खेल से, बेहतर प्लेसमेंट से अच्छे रिटर्न्स देखने को मिले। और 5-3 ये स्कोर लाइन बयां कर रही कहानी कि किस डोमिनेशन के साथ खेल रही है। और वापस सर्व करने के लिए समीना रियाज। If only on that occasion Yashi has gone for a softer drop. Nevertheless, she got that 1 point in her kitty, but hitting nice little boost from Yashi on that occasion, changing the angle of the volley, and that kind of helps you. You know, this is what has kind of helped Shamina Riaz so far. She's 7-4, will be serving in this game number 2. देखिए बुस्ट एक बार फिर से बहुत खूबसूरती से साइड बॉल से टकराई और यहाँ पे ये थोड़ी बहुत जो खामियां हैं उन्हें सुदृढ़ करना होगा क्योंकि ये दूसरा सेट है, पहला सेट गंवा चुकी है यशी। एक और खूबसूरत किल और एक और पॉइंट समीना रियाज के नाम। रियाज अपने पूरी तरीके से रुतबे के मुताबिक खेल रही है। You know, frankly, because I don't really like it when athletes make those unforced errors back to back. You know, even when they have that advantage, they give it away so easily. 2 returns from Yashi Jan going back to back into the tin, and that's gonna hurt her. There you see, once again she was looking back at the referee as if she was there was a bit of an infringement or intentional blocking from Shamina Riaz. But now with the 5 ball points, Shamina Riaz in game number 2. There's one more point to Yashi. She saved one ball point here in this game number 2. बहुत ही ज़बरदस्त से खेल दिखा रहे समीना रियाज, चाहे बैक हैंड पे रिटर्न देखे, फोर हैंड पे देखे, कोर्ट कवरेज देखे इनका। इस बार ज़रूर यहाँ पे हल्के हाथों से पुश किया था, लेकिन ये अपने सर्विस पॉइंट अपने पास सर्व किया पॉइंट मिलेगा यशी को। यहाँ पे तारीफ करनी होगी अब एक और पॉइंट यशी जैन के नाम। यशी चुनौती दे रही अक्षय, काफ़ी अच्छा, एक तरफा नहीं होने दिया इस मुकाबले को। पिछले 2 पॉइंट्स यशी जैन के नाम है और थोड़ी सी चुनौतियां बढ़ाती हुई, लेकिन यहाँ पे ये मुकाबला अपने नाम कर लिया है 11-8 के फासले से। पिछले मैच में बहुत चुनौती पेश की थी, 10-12 ये था स्कोर लाइन, यानी कि 12 पॉइंट्स थे समीना रियाज के और 10 थे पिछले सेट में। लेकिन ये सेट 11-8 से उसके तुलना में कहीं आसानी से जीत अर्जित की अक्षय। और तमिलनाडु पहले सेट में भी टीम इवेंट है, गर्ल्स सेमीफाइनल। पहले सेट में हमने देखा था ऋत्विका बुंदेला को दीपिका भी ने हराया था, और अब इस सेट में अगर बात करें शुरुआती 2 सेट अपने नाम की है, यहाँ से तारीफ काबिल स्कोर लाइन कहानी बयां कर रही है।
समीना रियाज 12-10, 11-8, 2 शुरुआती सेट अपने नाम की है। आप बने रहिए ऐसे ही डीडी स्पोर्ट्स पे। सीधा सजीव प्रसारण लेकर के हम इस वक्त नेहरू स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इंडियन स्क्वैश एकेडमी से हम आप तक लाइव हैं और ज़बरदस्त ये मुकाबला। देखिए काफ़ी अच्छे खासी संख्या में समर्थक भी मैच देखने आए अक्षय। ये बहुत अच्छे संकेत है, स्क्वैश कैसे आगे बढ़ रहा है उसकी एक खूबसूरत ये तस्दीक और तायद कराने वाली तस्वीरें हैं। आज काफ़ी संख्या में खेल प्रेमी आए हैं और तमिलनाडु का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है शुरुआत से, तारीफ करनी होगी जो। और आप देख सकते हैं अगले सेट में जब दोनों प्लेयर्स आएंगे एक अलग रणनीति होगी। यशी ने चुनौती काफ़ी अच्छी दी है, आसानी से मुकाबला गंवाया नहीं है। और देखिए खेल प्रेमियों की एक अच्छी खासी तादाद आज मैच देखने। तो ये फिलहाल मेरे साथ कुछ ही पलों में जुड़ेंगे कमेंट्री बॉक्स में नीति रावत। और ज़बरदस्त यह मुकाबला अक्षय, ये सेट यशी के लिए बड़ा डू और डाई है और उनमें वो काबिलियत और सामर्थ्य है कि वापसी कर सकती है, जैसा खेल दिखाया उन्होंने। फिलहाल यशी जैन और शमीना रियाज तीसरे सेट की शुरुआत होनी है। 2 सेट अपने नाम की है, येलो कलर की जोशी में है शमीना रियाज और शुरुआत भी बहुत अच्छी की है उन्होंने। यहाँ से अगर देखें बहुत है मुकाबला रहेगा ये। Because now in this game number 3 here, Shamina Riaz has leveled the score, but the serve is with Yashi, and Yashi would like to correct those mistakes because every time she had the advantage, she's let it slip out of her hand so easily that's going to hurt her. And if she could win this game number 3 and stay in this match, I'm sure it will be a lot more interesting because going into straight games, it's not really that much fun to watch. Yashi Jan with a lead of 2 points in game number 3 as she leads this 3-1 here. Her service is something that I'm not really very pleased about. There's not enough throttle in her service, Yashi Jan, and that lack of pace allows Shamina and her opponents to have enough time to react to her. Nice straight backhand there. Excellent work there. 2 back-to-back points here for Yashi now as she sits comfortably at 4-2, will be serving. There you see a soft service. Oh, great, rare mistake. She was trying to do what she's done so successfully, Shamina Riaz, trying to create that boast which she's done so well. But unfortunately, on that backhand, she couldn't get the elevation enough where it would generate the pace to have a full-fledged, effective boast around the court. Nice neck there by Yashi. Brilliant. This is the first time I've seen this neck. We've been talking about it. It's a very smashed-looking thing, but it's the neck that really wraps up the volley. ज़बरदस्त अपनी बॉली का इस्तेमाल, अच्छी रीच का खूबसूरत रिटर्न, हल्का सा ड्राइव और स्मैश से मिश्रित शॉट। और एक और पॉइंट यशी ने कमाल की है इस सेट में। ज़बरदस्त रिटर्न आ रहा बैक हैंड पे, फोर हैंड पे और सर्व करती हुई यशी 7-3 के साथ। बोस्ट कमाल का, साइड वॉल से टकराई, फ्रंट वॉल तक बॉल गई और पॉइंट भी अपने नाम किया है। ये सेट में एक बदली हुई तेवर से खेल रही है। कमाल का गेम प्लान है यशी का। ओ हो ये क्लास, ये प्लेसमेंट जबरदस्त अंदाज में असहज करती हुई अपने प्रतिद्वंदी को। एक और पॉइंट यशी जैन के नाम। I would so love Yashi to in this game. She holds on to her nerves and win this game and stays in this match because she's such a brilliant player. It's never a good sight to watch a talented player lose in straight sets. And now with 1 point won by Shamina Riaz, she's got the serve now. And at 9-4, Yashi Jain is looking good in this game. As you rightly pointed out, she's a different player altogether. Nice backhand drive there on that occasion by Yashi. Nice nick there. This is what I like. Lovely angle created. Oh, brilliantly done, Yashi. Changing the pace, beautifully using the angle from the wall. And now with 6 ball points here, Yashi Jain in game number 3. बिल्कुल गेम नंबर 3 में अगर देखें सेट 3 में यशी जैन कमाल की अपनी एंगल्स का यूज की है। गैप में प्लेसमेंट कमाल का, जो कि फ्रंट वॉल और साइड वॉल के बीच में अपने प्रतिद्वंदी के लिए मुश्किलें पैदा की है।
और आखिरकार ये सेट अपने नाम कर लिया यशी जैन ने, यानी एक कठिन चुनौती पेश कर रही है। 11-4 के फासले से यशी जैन तीसरा सेट अपने नाम की है और अभी भी इस मैच को जीवंत रखा है। यानी कि शुरुआती 2 सेट गंवाने के बाद, लेकिन दोनों सेट में चुनौती दी थी वहां भी यशी ने। पहले सेट में भले ही 12-10 से मुकाबला गंवाया, दूसरे सेट में 11-8 से, और ये सेट में 11-4 से अपने नाम की। यानी कि कहानी बयां कर रहे स्कोर लाइन। समीना रियाज ने पहला सेट 12-10 से, 11-8 से दूसरा, और तीसरे सेट में शिकस्त का सामना करना पड़ा है। लेकिन अगला सेट बड़ा निर्णायक हुआ। क्या अक्षय 5 सेटों तक जाएगा? आइए देखते हैं हाइलाइट्स में। कितनी बढ़िया खूबसूरत रिटर्न और एंगल का जिसकी जिक्र कर रहे थे अक्षय, क्या बढ़िया रिटर्न था। प्लेस किया बॉल को बिल्कुल एंगल में, साइड वॉल और फ्रंट वॉल के बीच में, और इसके लिए पेशेंस और अप्रोच कमाल का होना चाहिए, और वो दिखाया है समय जबरदस्त तरीके से। अक्षय, क्या ये 5 सेटों तक जाएगा मुकाबला? क्योंकि लय में आ चुकी है, अपनी खोई हुई लय अर्जित किया है यहाँ पे यशी जैन ने। Well, because looking at the expressions of the spectators around the court, everybody would like this match to go into a 5-setter, because after Deepika won that straight set opening match in this team semi-final event against Ritvika Singh Bundela from Rajasthan, just to make the contest a lot more interesting, it will be nice if it could stretch on to the five games. And one has to say that Yashi looked a different player altogether. I must say that even during the individual semi-final event yesterday, Yashi wasn't looking this good. But today, as she's come out to represent her state, taking one for the team, she, after getting down two games in this game, she's come back so strongly, so beautifully with 11-4, and now here opening the account straight away with one love. Yashi Jain would like to hold on to her serve as long as possible and just score. Nice. This time service is also looking a little better here. Now using a feather out of her Riaz's pace. On that occasion, Riaz was all there. She was in the right position and she just got the correct angle and the correct length from the ball. Riaz was waiting for that return. बहुत अच्छी स्थिति में थी वहाँ पे, क्योंकि बॉल को खूबसूरत प्लेस किया था उस एंगल में कि अपने प्रतिद्वंदी, अपने विपक्षी के लिए मौका नहीं, और पॉइंट आसानी से अर्जित की। 2-1 के साथ सर्व कर रही है समीना रियाज। तीसरा सेट है। समीना रियाज एक और पॉइंट। ये सेट बहुत निर्णायक रहेगा यशी जैन के, क्योंकि समीना अगर ये सेट अपने नाम करती है तो मैच भी जीत लेंगी। क्योंकि बेस्ट ऑफ 5 का मुकाबला टीम इवेंट सेमीफाइनल का उनके रास्ते में आई। थोड़ी सी अगर बात करें यहाँ पे समीना रियाज के पक्ष में ये निर्णय जाता हुआ। स्ट्रॉन्ग पोस्ट देखने को मिला, साइड वॉल से टकराई फ्रंट वॉल तक, और सर्विस अपने पास रखेंगे अक्षय। इस सेट में अपनी शुरुआती दोनों सेट की झलक नजर आ रही है समीना रियाज, अपनी उसी लय, उसी रिदम, और ये क्लास इस खिलाड़ी की। Wrong movement there by Yashi Jain. She anticipated wrong when she had returned a straight back and drive on the ball. She thought that Riaz might try to look for a boast around the court or probably create an angle. She positioned herself on the other side of the court, but cleverly, very smartly, Riaz went for a straight back and drive there and alongside the narrow angle of the wall, and fetched 2 more back-to-back points with 8-1 in this decider, I would say. If Riaz holds on to her nerves, yeah, she would have no problem. And those kind of mistakes are not going to help Riaz hitting that one onto the tin, and that allows Yashi to serve after a long time. वाकई में समीना रियाज कमाल के एंगल का यूज कर रही है, चाहे वो साइड वॉल हो, फ्रंट वॉल हो। उनका बात करें बैक कोर्ट या फ्रंट कोर्ट, दोनों का अच्छी रीच का, और रिटर्न बैक हैंड पे, फोर हैंड पे, चाहे इस बार हल्की सी पोस्ट शॉट की कोशिश, और लेकिन कामयाबी उनको मिली है। अपने प्रतिद्वंदी समीना रियाज सर्व कर रही 9-3 के साथ तीसरे सेट में। और ये देखिए क्या खूबसूरती से ये इस खिलाड़ी की ताकत है। गेम पॉइंट पे आ चुकी हैं समीना रियाज।
10-3 गेम पॉइंट शमीना के लिए। हालांकि यशी को पॉइंट मिला, अपने प्रतिद्वंदी को काफी दूर रखा अपनी इस बार शॉट से। Nicely done there. She's looking at the referees and she's won that point. I really like that. I wish I could go back into the replay and see, because she positioned herself every time she's anticipated her movement. Then she looks a different player altogether. Oh, unfortunately, it's all over. Hitting that one into the tin air. Yashi Jan. Well, I must say she's a much better player than what she's looked in this contest against Shamina Riaz, but Shamina Riaz has been absolutely superb. She's so brilliant when it comes to those front court games, especially the way she generates those angles, just bringing those boosts at the right moment, changing the angle of the game at will, and that has allowed Shamina Riaz. I wish Yashi Jan had looked to do a lot more of that, but not so in this case. वाकई में क्या ज़बरदस्त खेल दिखाया, देख सकते हैं आप। खूबसूरती से एंगल बनाई, अच्छी कोर्ट कवरेज, रीच बहुत ज़बरदस्त। ये पुश था, स्ट्रेच करके आगे आई फ्रंट कोर्ट में, और ये खिलाड़ी हल्की सी बूस्ट हो, चाहे रिटर्न बैक हैंड पे देखें, और यही वजह है आप देख सकते हैं रिप्ले में येलो कलर में है शमीना रियाज, और ये मुकाबले को अपने नाम की शमीना ने, यानी स्थानीय खिलाड़ी हैं। 12-10, 11-8, 4-11 और 11-5, 5 सेटों में फ्रंट वॉल से रिटर्न देखिए, और क्या खूबसूरत कवरेज डीडी स्पोर्ट्स पे आप तक लेकर के। टीम इवेंट सेमीफाइनल है ये, नेहरू स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स चेन्नई से हम आप तक लाइव हैं, और फिलहाल मुकाबला इस समय टीम इवेंट्स में तमिलनाडु वर्सेस राजस्थान। 2 अभी तक प्रतिभागियों ने अपनी खेल दिखाया है, दीपिका भी और शमीना रियाज, दोनों गेमों में अपने अपने नाम की है। और अगला जो टीम इवेंट्स में नज़र आने वाली है अनन्या नारायण तमिलनाडु से और छवि सरन राजस्थान की। और बता दूं अनन्या नारायण के बारे में कि 8th रैंकिंग है इनकी, और बड़ी युवा उदीयमान खिलाड़ी हैं। आपको बता दूं चेन्नई की रहने वाली अनन्या अंडर 17 एज कैटेगरी में खेलती हैं, बड़ी प्रतिभावान हैं अनन्या, और छवि की भी उतनी ही तारीफ करनी होगी। फिलहाल जुड़े रहिए, क्योंकि ये तीसरा अगर बात करें प्रतिभागी टीम इवेंट सेमीफाइनल में, अक्षय ये निर्णायक रहेगा कि किस तरीके से राजस्थान के लिए यहाँ प्रदर्शन रहता है, क्योंकि शुरुआती 2 बात करें टीम इवेंट्स में मैच गंवाया है, तो ये काफ़ी अहम रहने वाला उनके लिहाज से। That's right, Vikas. And even though Tamil Nadu in the semi-final has sealed its berth for the final in the team event, but as they say, it is the best of 3. So after having won the 2 opening games between Deepika and Ritvika and Shamina and Yashi Jan, Tamil Nadu has comprehensively sealed its place for the final. And it is always up to the players if they really want to go for the 3rd game. But more often than not, players would like to have some practice there, unless and until there is some kind of injury or something that they want to avoid in that rather insignificant game number 3. So here the Rajasthan and Tamil Nadu athletes decided that they have to play. They would like to go for a 3rd game here, even though it's not going to change much. But nevertheless, it's a good practice. They are playing at such a high platform. It's the 6th Khelo India Youth Games edition here in Tamil Nadu, and what a brilliant host Tamil Nadu has been able to. Because have you been able to see any places around Chennai? Because such a beautiful city, the capital city of Tamil Nadu, and we all know that the national games, the 23 events are being played over the 4 different venues: Chennai, Coimbatore, Trichy, and Ooty. And but we are covering this event from Chennai, and it's a beautiful city. Have you had any chance to look around, try this filter coffee or any of the delicacies from Chennai or Tamil Nadu food courts? It's such a rich food culture here in Chennai. बिल्कुल अक्षय, बहुत सही चीज़ कहा आपने। चेन्नई बहुत ही खूबसूरत शहर है, और भारत के एक कहा जाए परंपरागत बड़े ही प्रतिष्ठित शहरों में। और यहाँ की मरीना बीच मैं पिछली बार आया था हॉकी करने, प्रसार भारती का मैं धन्यवाद देता हूँ और पूरी टीम का। तो वहाँ हॉकी के दौरान मैं मरीना बीच गया था, और वहाँ बड़ी खूबसूरत
तस्वीर थी। समुद्र की लहरें जिस तरीके से आती हैं, आसपास में बड़े पर्यटक आते हैं वहाँ पे, और चेन्नई की कई खूबसूरती है। चेन्नई एक भारत का बड़ी ही पुराना शहर है और इस शहर की अपनी एक अलग मिजाज है। एक मैं देखता हूँ खेल के प्रति दीवानगी भी कमाल की है। अक्षय, यहाँ की आपने फूड की जिक्र की, तो काफ़ी चीज़ें हैं जो चेन्नई की बड़ी अपनी अलग पहचान रखती है। खूबसूरत यहाँ की संस्कृति और खेल का एक बड़ा केंद्र बनते जा रहा है, हॉकी के लिहाज से, स्क्वैश के लिहाज से। इसके अलावा आप देखें यहाँ पे कई बड़े इवेंट्स होस्ट होते रहे हैं और एक भारत का एक परंपरागत कल्चर जो दक्षिण भारतीय संस्कृति है उसका एक बड़ा केंद्र चेन्नई। और कई चीज़ें की स्पेशलिटी, जैसे फूड की बात की, यहाँ की जो रहन सहन है लोगों का, वो खेल उनके माने स्वभाव में है, उनके रहन सहन में शामिल होता है। और कई ऐसे लोग आ रहे हैं जो सामान्य लोग हैं, मैच देखने पहुंचते हैं। इससे जाहिर होता है खेलो इंडिया का मुहिम कितना आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे। ये बड़ी प्रशंसनीय सोच वाकई में। Definitely, it's a very important city, historical city, and one has to say that the kind of history it has. I remember I was a student of history literature, and I used to read a lot about the modern history. And one of the initial high courts that was set up by Lord Cornwallis in the initial British rule was at Madras Presidency, and it was a big strait there. And obviously, after the independence, this beautiful unification that was done by Sardar Patel to the entire nation has, in the modern context, Chennai being the capital city of Tamil Nadu, has got a lot of history here. So yes, a lot of food, a lot of history, and a lot of things which are, you know, a part of our experience apart from sports, but the kind of people that we are, very hospitable, very warm and loving people, and especially when it comes to food, because there's so much of variation, even in the vegetarian, and inspired of being a coastal city where there is a lot of fish and a lot of seafood also available, but those sambar and idlis and so much of variety in dosas. I tell you, I am always having my plate full in the breakfast table also. Every time our contingent in the commentators, they see my plate full with South Indian delicacies. It's such a delight to be here in this beautiful city of Chennai. अक्षय, यहाँ जो ब्रेकफास्ट की आपने जिक्र की, इतनी बढ़िया इडली बड़ा, ये इतना खूबसूरत यहाँ का माने क्वालिटी एक अलग जो संस्कृति है यहाँ पे। फिलहाल अब शुरुआत हो रही है तीसरे, अगर बात करें टीम इवेंट में, मुकाबले की। एक तरफ अनन्या नारायणा जो कि इस वक्त तमिलनाडु के प्लेयर हैं, 26 रन शुरुआत की है। 26 रन राजस्थान के प्लेयर ने पॉइंट के साथ, जो आपके स्क्रीन पे राजस्थान के प्लेयर ब्लू कलर की जर्सी में है, येलो में है अनन्या। बहुत कम उम्र के खिलाड़ी हैं, महज 16 वर्षीय अनन्या। और आपको बताते चलें कि चेन्नई विदेशी पर्यटकों का भी सबसे बड़े नगरों में से एक है। 2015 में 43वें सबसे ज़्यादा शहर बना था चेन्नई, जहां विदेशी पर्यटक आते हैं। और यह नगर बहुत खूबसूरत अपनी पहचान रखता है अपनी इमारतों के लिए, अपनी आईटी के भी हब के तौर पे चेन्नई की पहचान है। और शुरुआत बहुत अच्छी की है 26 रन राजस्थान के लिए, सर्व करती हुई 3-1 के साथ। एक और पॉइंट 26 रन के नाम। बहुत अच्छे स्किल दिखा रही हैं, बहुत अच्छा गेम प्लान है, बेहतर कोर्ट कवरेज, हल्का सा पोस्ट शॉट साइड बॉल से टकरा करके। और अब पॉइंट मिला है इस समय अनन्या को। सर्व किया था 2-4 के साथ इस पहले सेट में। अच्छी आके सामने गई इस समय। फ्रंट अगर बात करें कोर्ट में, फ्रंट और बात करें बैक कोर्ट का अच्छा यूज, अच्छे रिटर्न, चाहे बात करें साइड एंगल का, बात करें नैरो एंगल, सबका खूबसूरत इस्तेमाल कर रही हैं अनन्या नारायण। 2 पॉइंट के साथ 5 पे हैं 26 रन। ब्लू जर्सी में खूबसूरत कोशिश, लेकिन यहाँ पे मिलेगा सर्विस अब अनन्या को। अनन्या, ये बहुत ही दर्शनीय
कमाल की दर्शनीय प्रदर्शन है ये। 5 ऑल वापसी की बिगुल है ये अनन्या नारायणन की। 17 वर्षीय ये 16 और 17 वर्ष के बीच की बड़ी कम उम्र की प्लेयर। रैंकिंग भी इनकी बहुत अच्छी है। अगर बात करें इंडिया में इस खिलाड़ी की 8th रैंकिंग अनन्या की। और वहीं छवि सरन भी बहुत अच्छा प्रदर्शन। खूबसूरत रैली एंगल में शानदार खेल दिखा रही है। रीच का, प्लेसमेंट का, ड्राइव देखें, बहुत अद्भुत। और अभी तक 7-6 चुनौतीपूर्ण मुकाबला अक्षय। Well, obviously, this Chinoti, as you called it, is not much of a difference it's going to make in the overall result of Tamil Nadu, because they have already cruised into the final of team event after Deepika and Shamina successfully defended their respective state in this semi-final of team event. But Ananya here also in the lead. She would like to give it a more of a thumping victory for Tamil Nadu, as she leads by 1 point in this third match between Tamil Nadu and Rajasthan. But Chavi Saran has shown some positive signs here. She's taken her chances, and I really like the way she is compelled Ananya to make those unforced errors as she did on that occasion. And she's got a better serve also. I think she should have come out to play match number 2 for Rajasthan. Probably the story could have been different for Rajasthan in this semi-final. But now at 9-8, 9-9, the scores are leveled. And now game ball for Ananya Narayan. Good angle generated there. She positioned herself beautifully. And that's it for Ananya Narayan. Has sealed this opening game in this third match between Tamil Nadu and Rajasthan. And the story remains same, Vikas, for Tamil Nadu athletes. But I really still feel that, going back to that point I was trying to make here, that Chavi Saran should have come to play the game number 2 for for Rajasthan. Probably. But Yashi Jan is also an equally talented player. It's just that she's not getting the right form in this Khelo India games. She's not looked in the touch that Yashi Jan is known for, because otherwise she's a very, very gifted player. She's had enough experience. She's been playing for almost 8 or 9 years, and she's a very, very talented player. Look at that in the replay. You can see how Ananya Narayan and Chavi Saran have gone about this opening game, which Ananya won at 11-9. बिल्कुल देख सकते हैं रिप्ले में क्या खूबसूरत रिटर्न बैक कोर्ट से। अच्छे समय बैक हैंड रिटर्न कमाल का। फोर हैंड पे आगे गई कोर्ट में। अच्छा ड्राइव, अच्छे प्लेसमेंट और कोर्ट कवरेज भी काफ़ी बेहतर। अनन्या नारायण शुरुआत मात्र उन्होंने 9 वर्ष में की। 8th रैंकिंग है इंडिया में अंडर 17 एज में। और ये बात करें आप मूलतः चेन्नई इसी शहर से हैं अनन्या नारायण, और काफ़ी प्रतिभावान खिलाड़ी। पहला सेट अपने नाम किया अनन्या ने 11-9 से। लेकिन छब्बी की भी तारीफ करनी होगी, बहुत अच्छी चुनौती दी थी छब्बी ने। फिलहाल अब दूसरे सेट के लिए सेंटर कोर्ट में यह मुकाबला चल रहा है, जहां स्क्वैश टीम इवेंट गर्ल्स सेमीफाइनल। अच्छे खासे खेल के चाहने वाले, खेल को पसंद करने वाले खेल प्रेमियों की तादाद पहुंची है। इंडियन स्क्वैश एकेडमी से हम सीधा प्रसारण लेकर के आप तक। क्या खूबसूरत एंगल और बेहतरीन कवरेज दूरदर्शन स्पोर्ट्स की। दूसरा सेट निर्णायक रहेगा। पूरी तरीके से तमिलनाडु का डोमिनेशन रहा है स्क्वैश में, टीम इवेंट में भी, इंडिविजुअल में भी। और अब इस समय टीम इवेंट में शुरुआत अच्छी की है यहाँ पे अनन्या नारायण ने। पॉइंट के साथ पहला सेट भी अपने नाम किया था 11-9 से। और 2 शुरुआती अगर बात करें पॉइंट्स लेकर सर्विस बॉक्स से सर्व करती हुई अनन्या। क्या सेंसेशनल शुरुआत है ये। 3
पॉइंट्स की लीड 3 ऑल के साथ। बहुत खूबसूरत ये शुरुआत। अनन्या नारायण पूरी तरीके से अपने प्रतिद्वंदी को इस सेट में उनका मनोबल को काफी तोड़ दिया। अक्षय शुरुआत 4 पॉइंट्स के साथ, किसी तरीके से भी वापसी की लकीर लिखने के दूर। Well, talking about Wapsi, just when you said it, Chavi Saran produced that brilliant forehand drive there from the side of the right side of the court and literally did not allow Ananya to have any go at all. And now with 2 back-to-back points to Chavi, she's looking a lot more better player. Once again, a beautiful burst created, a very soft, gentle in the upper court there. Oh, repeating that thing again, beautifully done by Chavi Saran. It's almost like a replay of her earlier point, which she won at point number 2. And now at 4-4, Chavi Saran. Look at that, changing the pace of it and making Ananya struggle there in the upper court there. Beautiful drop shot there. Quite delicate on part of Chavi Saran. Very well done, girl. वाकई में छवि सरन शुरुआती 4-0 से पीछे चलने के बाद अब बात करें अब मुकाबले में वापसी की लकीर है। और क्या कहने, छवि सरन अब लीड में आ गई है। 6-4 के साथ सर्व करती हुई क्वालिटी दिखाई है। बैक हैंड रिटर्न हो, फोर हैंड है, कोर्ट कवरेज और रीच काफी अच्छी है। ये प्रशंसनीय, क्या कहने इस खिलाड़ी के। विवश कर दिया प्रतिद्वंदी को। यहाँ पे तारीफ होनी चाहिए अनन्या की भी। कांटे की टक्कर अक्षय, नेक टू नेक फाइट। What happened there exactly? I don't understand. Ananya was right there, but she kind of just yogged herself. She was there. I think the return from the ball was actually dropping too low that even she reached there, she couldn't really roll her racket onto it as well as she would have liked. And now at 6-7, scores level, that little opening that Ananya was looking for, but Chavi has looked really good. She has really looked good, but unfortunately, Ananya has found the momentum that she was looking for, and she's not allowing any width to Chavi at all. With 8-7, she's looking very strong, and those little unforced errors, trying to create that burst, but unfortunately the height wasn't there, and hitting one on the tin has allowed Ananya with a 2 points lead in a very, very crucial game number 2 in this third match between Tamil Nadu and Rajasthan, as Ananya serves at 9 for the game here at 10-7. And it's all over for Chavi now. कमाल के इस मैच में वापसी की हल्की सी झलक दिखाई थी। अच्छे रिटर्न, कुछ अच्छे बूस्ट शॉट, बूस्ट का प्रयास था, अच्छी खूबसूरती से चाहे ड्रॉप हो, ड्राइव हो, लेकिन आखिरकार अनन्या नारायण अपनी श्रेष्ठता दिखाई अपनी कोर्ट कवरेज में, अपने बैक हैंड फोरहैंड रिटर्न में, चाहे बात करें किल शॉट कमाल की खेली और उसी टेम्परामेंट, उसी प्रतिबद्धता। और देख सकते हैं आप हाइलाइट्स में दूसरे सेट की ये कहानी है। टीम इवेंट सेमीफाइनल रिप्ले में देखिए, पूरी तरीके से रीच से दूर रखा था। इतना अच्छा शॉट फ्रंट वॉल में, ये खूबसूरती समय रिटर्न आया था। और यही खूबसूरती है इस खिलाड़ी की, अनन्या नारायण। 8th रैंकिंग इंडिया में अंडर 17 एज कैटेगरी में इस खिलाड़ी की, और दूसरा सेट भी अपने नाम किया। हालांकि चुनौती बहुत अच्छी दे रही है सभी शरण। शबी की छवि जो है वो एक प्रतिबद्ध वाली है, जो संघर्ष करना जानती हैं। और सबसे अहम बात कि अक्षय एक वक्त 4-0 के स्कोर के बाद अगर मुकाबला इतना क्लोज लेकर जाएं 11-7 तक, तो मेरा मानना है कि ये खिलाड़ी में बड़ी प्रतिभा है। और आने वाले समय में देखिए आप, बहुत अच्छे प्रतिभावान ये सितारे स्क्वाड से निकलेंगी। फ्रंट वॉल हो, साइड वॉल हो, रिटर्न हो, अच्छी कोर्ट कवरेज हो। और ये देखिए खूबसूरती से आगे आकर के ये जो शॉट था, वो प्रतिद्वंदी के लिए मौका नहीं दिया उन्हें रिटर्न करने का, उनकी रीच से दूर रखी। और देखिए क्या खूबसूरत एंगल का उपयोग अक्षय। And even when Chavi was trying to take it on full and created those powerful return from the wall,
she never shied away, Ananya Narayan, to take it on, and she positioned herself beautifully for those returns, always prepared at the center of the tee to take any side of the court. And obviously her court coverage proved to be her strongest feature as far as these two games are concerned. And I'm sure that even in game number 3, Ananya Narayan from Tamil Nadu will come out all guns blazing, because the kind of confidence, the kind of morale, she's literally brimming with confidence right now, because not only her team is in final, but she's playing like a match which is more of a formality, and it's just giving her a good match practice for herself. बिल्कुल, देखिए खेलों में भले ही परिणाम कुछ भी हो, लेकिन आपका प्रदर्शन और आपके खेलने का जो तरीका है प्रभावित करे, और आगे आने वाले बड़ा संसार आपके लिए है। एक बड़ा, अगर बात करें, मंच रहेगा, क्योंकि ये बुनियादी सुविधाएं जो भारत सरकार खेलो इंडिया के तहत एक मुहिम है, एक नवोदित प्रतिभाओं को तराशने की, उन्नयन उत्थान की, और ये शुरुआत भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 6ठे संस्करण में, और खेलो इंडिया ने कई अच्छे परिणाम दिए हैं। कई प्लेयर्स राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे अपनी प्रतिभा का लोहा मनाकर भारत को स्वर्णिम सफलता दिलाते हैं। फिलहाल हम तमिलनाडु के इस खूबसूरत नेहरू स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इंडियन स्क्वैश एकेडमी से लाइव प्रसारण लेकर के फिलहाल बताना चाहूँगा कि गर्ल्स सेमीफाइनल्स टीम इवेंट, जहां तमिलनाडु और राजस्थान आमने सामने हैं। अनन्या नारायण तमिलनाडु से और छवि सरन। शुरुआती 2 सेट अनन्या ने अपने नाम की है, लेकिन अब यहाँ से क्योंकि सिर्फ एक औपचारिकता है, पहले ही तमिलनाडु ने इस टीम इवेंट गर्ल्स को शुरुआती 2 गेम जीत करके अपने हिस्से में कर चुकी है। लेकिन औपचारिकता के साथ साथ मैं मानता हूँ थोड़ी अहमियत ये है कि सीखने के लिहाज से बड़ा अहम रहेगा। फिलहाल बने रहिए, देख सकते हैं सीधा सजीव प्रसारण आप तक डीडी स्पोर्ट्स लेकर के, और हमारे खेल के चाहने वाले दर्शक बड़ी संख्या में आए हैं। चेन्नई शहर की हमने जिक्र की, और बहुत खूबसूरत इस समय चेन्नई शहर जो बीचों का शहर है, सी फूड की हमने बात की। यहाँ के संस्कृति बड़ी, क्योंकि दक्षिण भारत का सबसे पुराना शहर माना जाता है चेन्नई, और चेन्नई व्यापार का केंद्र रहा है भारतीय इतिहास में देखें तो। और मेरे साथ जुड़ रही हैं अब कमेंट्री बॉक्स में इस वक्त मैं स्वागत करना चाहूँगा नीति रावत जी का, और नेहरू स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इंडियन स्क्वैश एकेडमी से हम लाइव आप तक। खेलों के लिए भी बड़ा ये अच्छा प्रदर्शन रहा है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स एक अभियान है, प्रतिभा को तराशने की एक अभियान है। बात करें भारतीय नवोदित सितारों को उत्थान उन्नयन की एक बहुत अच्छी पहल, और फिलहाल टीम इवेंट स्क्वैश में हम आप तक फिलहाल स्वागत करना चाहूँगा मेरे साथी नीति रावत जी का। नीति, स्क्वैश इवेंट टीम इवेंट्स में क्या अद्भुत प्रदर्शन, होम टीम तमिलनाडु का दबदबा पूरी तरीके से कायम है। थैंक यू सो मच विकास। और बिल्कुल जैसा आज डे की ओपनिंग में हमने जब बात की थी तमिलनाडु के कोच से, तो उनका भी यही मानना था कि बेशक उनको इंडिविजुअल इवेंट में थोड़ा निराशा उनके हाथ लगी हो, लेकिन टीम इवेंट में वो स्वर्ण पदक को देख रहे हैं। और जिस तरह से उन्होंने बताया कि तमिलनाडु में डोमिनेंस जो है, तमिलनाडु ने टीम स्पेशली टीम इवेंट में जो है वो डोमिनेंस पिछले कुछ टाइम में भी दिखाया है। तो पिछला जो पूरा वर्ष रहा है, जब टीम इवेंट की बात हुई है, तब तमिलनाडु की टीम उभर कर आई है। और इस बार जब खेलो इंडिया यूथ गेम में पहला मौका है स्क्वॉश के लिए, तो उन्हें उम्मीद है कि वो अपने घर पर स्वर्ण पदक पर कब्जा जमा सकते हैं। तो तैयार हो जाइए आज के दिन के इस बॉयज टीम इवेंट के सेमीफाइनल मुकाबले के लिए, जहां पर एक बार फिर घरेलू टीम जो है नजर आएगी कोर्ट पर। वो आसाम का सामना करेंगे, तमिलनाडु वर्सेस आसाम। और पहला टीम इवेंट का ये जो पहला मुकाबला है वो शिवेन अग्रवाल और अर्नव दत्ता के बीच खेला जाएगा। तमिलनाडु टीम ने अपने क्वार्टर फाइनल मुकाबले में मणिपुर को सीधे 3 गेम्स में हराया, 3-0 से शिकस्त दी थी। और आसाम ने केरला को क्वार्टर फाइनल्स में मात दी थी 2-1 से। तो वहाँ पर 3 गेम्स में थोड़ा स्ट्रगल
देखने को मिला है आसाम को केरला को हराने में थोड़ी सी मुश्किल का सामना करना पड़ा, लेकिन आखिरकार अब वो सेमीफाइनल में नजर आ रहे हैं। इस समय हम हैं नेहरू स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्क्वाश कोर्ट, चेन्नई, और हम बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि स्क्वाश का हब है ये शहर तमिलनाडु जो है राज्य। स्क्वाश में अपना ही एक इनका इतिहास है और आज जो है कंटेंशन सेमीफाइनल मुकाबलों में बॉयज सिंगल्स। यहाँ पे ग्राफिक में एक चेंज हम जरूर चाहेंगे कि ये स्क्वाश टीम इवेंट जो है बॉयज का सेमीफाइनल है। तमिलनाडु के शिवेन अग्रवाल और अर्नव दत्ता जो है आसाम के अपनी टीम इवेंट का पहला मुकाबला खेल रहे हैं। तो 3 मुकाबले खेले जाएंगे और अगर तमिलनाडु जो है पहले 2 मुकाबले जीत जाता है तो ये टीम डिसाइड करती है कि क्या उन्हें तीसरा मुकाबला खेलना है या नहीं। वो प्लेयर की चॉइस है, मैंडेटरी रूल नहीं है कि आपको तीसरा गेम खेलना ही है। बहुत सही बात कही नीति आपने। यकीनन तौर पे टीम इवेंट है। शिवेन अग्रवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पे तमिलनाडु का उभरता सितारा इस वक्त है। और जिक्र किया आपने स्क्वैश रैकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया नेशनल चैंपियंस में तमिलनाडु के बड़ा अहम योगदान रहा है। भुवनेश्वरी कुमारी एक बड़ा नाम, बात करें स्क्वैश में, चाहे बात करें मीशा गेरेवाल, ऐसे खिलाड़ी दिए हैं, दीपिका पल्लिकल दी है, ज्योत्सना चिनप्पा दी है इस खूबसूरत स्क्वैश ने। और उन्हीं के पद चिन्हों पे चल करके ये उभरते सितारे, ज्योत्सना चिनप्पा हो, चाहे बात करें सौरभ गेरेवाल हो, चाहे ऐसे सितारे तराशने की ये मुहिम है खेलो इंडिया नीति। और कितनी खुशी की बात कि अर्जुन अवार्डी जो एक बड़ी फेहरिस्त हम देखते हैं, केएस जैन से लेकर के हरिंदर पाल सिंधु पिछले साल जिन्हें अर्जुन अवार्ड मिला स्क्वैश में, पद्मश्री जैसे बड़े अवार्ड भुवनेश्वरी कुमारी और दीपिका पल्लिकल, यानी नीति ये बड़ा हब जिस लिहाज से आपने भी जिक्र की। और ये उद्यमान प्रतिभाएं उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर भारत के लिए मेडल की संभावनाएं प्रबल करेंगे। और साथ ही साथ उभरते हुए सितारे इस शहर में हैं चेन्नई के अरिहंत केएस, जिनका मुकाबला आपको कुछ ही देर में देखने को मिल सकता है। वो चेन्नई से ही आते हैं। और साथ ही साथ पूजा आरती, जिन्होंने कल अपने इंडिविजुअल इवेंट में गर्ल सिंगल्स में जो है सेमीफाइनल मुकाबला जीत लिया और अब वो अपनी चुनौती फाइनल मुकाबले में रखती नजर आएंगी। तो कुल मिलाकर 4 मिनट का वार्म अप, एक ऑफिशियल वार्म अप जो है टीम को मिलता है, खिलाड़ियों को मिलता है, जिसमें 2-2 मिनट जो है कैलकुलेट किए जाते हैं दोनों ही टीम्स के, दोनों ही प्लेयर्स के लिए। तो यानी कि अगर ये मुकाबला तमिलनाडु और आसाम के बीच में है और इस समय मैदान पर है, इस समय कोर्ट पर है शिवेन अग्रवाल और अर्नव दत्ता, तो 2 मिनट का समय अर्नव के पास होगा वार्म अप के लिए और 2 मिनट का समय शिवेन अग्रवाल के पास में। शिवेन वर्सेस अर्नव दत्ता, ये सेमीफाइनल्स, बॉयज का सेमीफाइनल और पहला मैच है ये। तो कुल मिलाकर 3 मैचेस जो हैं, यानी कि बेस्ट ऑफ 3 के मुकाबले खेले जाएंगे और जो टीम 2 मुकाबले जीत गई वो टीम सेमीफाइनल से जीत हासिल करके फाइनल्स में अपनी चुनौती रखती नजर आएगी। जी हाँ, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 स्क्वैश टीम बॉयज सेमीफाइनल से एंड बॉयज ये टीम इवेंट है, मैं आपको बताना चाहूँगा। और फ्यूचर इज हियर, ये सबसे कल भी हमने जिक्र की थी, यही भविष्य है भारत के उभरते प्रतिभाओं का। और इस बार एशियन गेम्स में भी हमने बहुत सारे मेडल्स देखे, उनमें से स्क्वैश में भी मेडल आया था, सबसे अहम बात। और आने वाले वक्त में मुझे लगता है कि चेन्नई ने जैसे 2007 में वर्ल्ड कप की मेज़बानी की थी स्क्वैश की, कई देशों को हमने आमंत्रण दी और स्क्वैश एक खूबसूरत सेंटर के तौर पे चेन्नई विकसित हो रहा है धीरे धीरे। और नीति, कल भी आपने जिक्र की थी कि 2028 ओलंपिक में स्क्वैश को जगह मिलने वाली है। ये बड़ी खुशखबरी है क्योंकि भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो स्क्वैश काफ़ी लोकप्रिय है साउथ भारत में, तो चेन्नई स्पेशली अगर वहाँ पे मौके मिलते हैं स्क्वैश में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक जैसे बड़े स्पर्धा में, हम उम्मीदें कर सकते हैं। फिलहाल अब लीजिए गेम की ओर लिए चलते हैं। स्क्वैश टीम इवेंट्स वाइड सेमीफाइनल, एक तरफ शिवेन अग्रवाल तमिलनाडु का प्रतिनिधित्व और अर्नव दत्ता जो कि आसाम के प्लेयर इस समय आपको
टेलीविजन स्क्रीन पे अर्नव दत्ता जो कि हैं वो 2 पॉइंट्स के साथ सर्व कर रहे हैं रेड जर्सी में। टेलीविजन स्क्रीन की बाईं तरफ असम के प्लेयर रेड जर्सी में है। ओहो हो, अनसेटल किया, रीच से दूर रखा, बहुत अच्छा रिटर्न भी। तारीफ करनी होगी यहाँ पे जिस तरीके से शिवेन अग्रवाल की नीति इस बार। दो की बराबरी शिवेन अग्रवाल वर्सेस अर्नव दत्ता। ये पहला गेम है इस मुकाबले का, बॉयज का टीम इवेंट का सेमीफाइनल मुकाबला, और 3 में से पहला मैच शुरू हो चुका है। 3-2 से इस समय शिवेन अग्रवाल 1 पॉइंट की एडवांटेज पर है। तमिलनाडु ने शुरुआत अच्छी की है आज के दिन की। ड्रॉप डालने की कोशिश, ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी थी वहां पर। ये बढ़िया रणनीति के साथ उन्होंने इस पॉइंट को निकाला। पहले बूस्ट किया, उसके बाद ड्रॉप प्लेस किया। स्लोली स्टेडली यहाँ पर आगे निकलने की कोशिश जो है नजर आने लगी है शिवेन अग्रवाल की ओर से। और अब देखिए उन्होंने 4 पॉइंट्स का डिफरेंस बना लिया है अर्नव दत्ता के खिलाफ। नीति, कल्पना कीजिए शुरुआत अर्नव दत्ता ने 2 पॉइंट्स के साथ की थी, लेकिन शिवेन अग्रवाल अब धीरे धीरे अपनी श्रेष्ठता, अपनी कौशल, बात करें रिटर्न, कोर्ट कवरेज, चाहे पोस्ट शॉट की आपने जिक्र की, फ्रंट वॉल, साइड वॉल, एंगल, ये तमाम बेसिक्स पे बेहतर काम। और शिवेन अग्रवाल सर्व करेंगे एक और पॉइंट के साथ 7-3 के साथ। यहाँ पे अर्नव दत्ता को पॉइंट मिलेगा क्योंकि शिवेन अग्रवाल ठीक तरीके से रिटर्न नहीं कर पाए। बहुत चुनौतीपूर्ण ये मुकाबला स्क्वैश टीम बॉयज सेमीफाइनल का खेलो इंडिया यूथ गेम्स के इस 6ठे संस्करण में 8-4 के साथ इस वक्त ये पहला सेट तमिलनाडु और असम के दरमियान। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी यूथ गेम्स एक बहुत खूबसूरत एक सोच, एक अभियान है भारतीय प्रधानमंत्री को खेलों को तराशने की दिशा में, और पहली बार स्क्वैश को शामिल किया गया है। और अरिहंत जैसे खिलाड़ी हों, चाहे बात करें तमिलनाडु 5 मेडल ऑलरेडी नीति अपने हिस्से में कर चुका है, उसकी संख्या और बढ़ाना चाहेंगे। और देखिए गेम पॉइंट पे पहुंच गए हैं, लेकिन यहाँ पे सर्व कर रहे हैं असम के प्लेयर अर्नव दत्ता। विकास शिवेन अग्रवाल को जो है फ्यूचर होप्स माना जा रहा है स्क्वॉश में, और पिछले सीजन में काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंसेस जो है उनकी तरफ से देखने को मिली है। राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भी अंडर 15 की कैटेगरी में इन्होंने काफ़ी प्रभावित किया है अपने प्रदर्शन से। और शिवेन अग्रवाल अपना पहला गेम तो उन्होंने 11-5 से एक 1 साइडेड कह सकते हैं कि ज़्यादा मुश्किलों का सामना उन्हें इस पहले गेम के दौरान करना नहीं पड़ा है। और हम उनकी परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, पिछला पूरा सीजन जो है शिवेन अग्रवाल ने काफ़ी सरप्राइजिंग परफॉर्मेंसेस दी हैं, राष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन करते नजर आए हैं अंडर 15 में की कैटेगरी में। और फ्यूचर जो है स्क्वॉश का भविष्य जो है उनमें नज़र आता है। पहला गेम 11-5 से जीत लिया है, एक अच्छी शुरुआत आसाम के लिए, वहाँ पे अच्छी शुरुआत जो है तमिलनाडु के लिए है। और तमिलनाडु ने आज के दिन में सेमीफाइनल मुकाबला जीत लिया है गर्ल्स टीम इवेंट में, और बॉयज़ टीम इवेंट में अपना पहला मुकाबला जीत लिया है। देखिए कितने एक्साइटेड हैं हम इस मुकाबले के लिए। हम चाहते हैं कि आसाम जो है जीते, क्योंकि स्क्वॉश जैसे स्पोर्ट में आसाम से जो पार्टिसिपेशन आना ही अपने आप में एक बड़ी बात है। और ख़ास तौर पर तमिलनाडु जैसी टीम के खिलाफ खड़ा होना। देखिए नॉर्थ ईस्ट में जो स्पोर्ट्स हैं, हर रीजन की एक अपनी स्पोर्ट्स की डोमिनेंस है। स्क्वॉश के खिलाड़ी अब आसाम से आने लगे हैं, ये दिखाता है कि जो खेलो इंडिया का मूवमेंट है, जो मिशन है, अब जो भविष्य है ना, हर स्टेट से आना शुरू हो गया है। अब वो रीजनल डोमिनेंस है, धीरे धीरे वो समाप्त होने लगा है। एंड एक्साइटिंग कि यहाँ पर जो है आसाम वर्सेस तमिलनाडु हमें सेमीफाइनल देखने को मिल रहा है। बहुत सही बात कही नीति, यही खेलो इंडिया की एक सोच भी थी कि पूरे भारत में खेलों की क्रांति हो,
और असम का इस स्टेज पे परफॉर्म करना सेमीफाइनल में एक बड़ी ताकत एक दिखाती है और अंदर से एक कहते हैं प्रेरित करेगी इन प्लेयर्स को और नए प्रतिभाएं जो फॉलो कर रहे होंगे डीडी स्पोर्ट्स और हमारे प्रसारण को भी। अर्नव दत्ता शुरुआत हमेशा अच्छी करते हैं ये, पिछले सेट में भी 2 पॉइंट्स उनके नाम थे, लेकिन अब 3-1 की बढ़त बना ली है शिवेन अग्रवाल ने दूसरे सेट में। अच्छा कोर्ट कवरेज, बैक कोर्ट से रिटर्न आया 4-2 के साथ सर्व करते हुए शिवेन अग्रवाल। जरूर थोड़ी सी तमिलनाडु टीम बढ़त पे है नीति, क्योंकि उन्होंने इनका सबसे फेवरेट खेलों में से है स्क्वैश और यहाँ परंपरा ही है 7-8 सालों में स्क्वैश में प्रतिभाएं आ जाती हैं, तो ये कल्चर सा है यहाँ स्क्वैश के प्रति। बैक एंड स्ट्रोक, बैक एंड शॉट लगाने की कोशिश की थी, लेकिन कन्वर्जन कोई विनर नहीं अभी मिला है। ओह, पहुंच तो गए थे वहां पर, लेकिन थोड़ा सा जो एंटिसिपेशन था, जो मूवमेंट थी ना, अगर आप वहां पर देखते कि जो मूवमेंट है थोड़ा सा ऑफ पोजीशन, ऑलरेडी ऑफ पोजीशन हो चुके थे और ये पॉइंट अर्नव दत्ता के लिए। बिल्कुल, अर्नव दत्ता अब वापसी कर सकते हैं, ज़्यादा अंतर नहीं है। एक और पॉइंट अर्नव का, अच्छा रिटर्न बैकहैंड पे, फ्रंट वॉल हो साइड वॉल हो चाहे वस्तु शॉट, कोशिश अच्छी कर रहे हैं और अच्छी रीच का भी इस्तेमाल करते हैं। रिटर्न काफ़ी बेहतर, यहाँ पे तारीफ करनी होगी, शिवेन अग्रवाल की तारीफ करनी होगी, अपने प्रतिद्वंदी की रीच से दूर रखा, सर्व कर रहे हैं 7-4 के साथ। यहाँ पे अर्नव दत्ता की तारीफ होनी चाहिए नीति, मैच में इस सेट में बड़ी चुनौती दे रहे हैं, फासला ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 2 पॉइंट्स का फासला और एक और पॉइंट अर्नव दत्ता के लिए। ये कारवां जहां आप देखते हैं ज्योत्सना चिनप्पा हो, दीपिका पल्लिकल हो, अनहत सिंह जैसे प्लेयर दिए हैं इस स्क्वैश ने। सिर्फ 1 पॉइंट का डिफरेंस रह गया है। एक डिफरेंस क्रिएट करने की कोशिश ज़रूर की थी शिवेन अग्रवाल ने। पहला गेम उन्होंने एक कंफर्टेबल विन हम कह सकते हैं उनको मिली है 11-5 के स्कोर के साथ में। 7 ऑल। यहाँ पे अर्नव दत्ता बहुत बढ़िया खेल दिखा रहे हैं, असम का उदीयमान सितारा, उम्मीदें बरकरार रखा है इस सेट में, बहुत कड़ी चुनौती दे रहे हैं, रीच और कोर्ट कवरेज कमाल का, रिटर्न्स काफ़ी अच्छे। यहाँ पे रेफरी को देख रहे हैं आशा भरी निगाह से नीति कि शायद उनके हिस्से में कुछ पॉइंट्स आ जाएं। एक अच्छी वापसी की है यहाँ पे अर्नव दत्ता ने। ये पहला मौका है अर्नव दत्ता के लिए कि अब उनके पास में 1 पॉइंट की बढ़त है इस दूसरे गेम के दौरान। कितना खूबसूरत कवरेज है, यहाँ पे देख सकते हैं आप डीडी स्पोर्ट्स पे। वाओ, ब्यूटीफुल। वहां पे कह सकते हैं ना कि इतना खूबसूरत वो प्लान था जिसको उन्होंने एग्जीक्यूट किया है। वो लगातार जो है ऑफेंसिव अटैकिंग मोड में, शुरुआत से ही इस रैली के दौरान वो अटैकिंग मोड में नजर आए थे। वो लगातार अपने लिए ओपनिंग क्रिएट्स करते रहे और एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी विकास की उन्होंने ना फ्रंट वॉल और अपनी जो राइट वॉल है उसका बेहतरीन इस्तेमाल किया है। बूस्ट के लिए गए, कभी वहाँ पर बैक हैंड स्ट्रोक्स लगाए, कभी फोर हैंड स्ट्रोक्स लगाए और फाइनली उनको कामयाबी मिल गई एक विनर लगाने में। कमाल की आर्यन दत्ता, रीच का बेहतर कोर्ट कवरेज, शानदार गेम प्लान
और रिटर्न्स इतने फोरहैंड पे बेहतर, एक अद्भुत प्रदर्शन इस खिलाड़ी का। हालांकि शिवेन अग्रवाल ज़्यादा दूर नहीं है, 8-9 के साथ अब सर्व करेंगे शिवेन। कड़ी चुनौती मिल रही है इस सेट में। देखिए विकास, जो पॉइंट उनको मिला था ना, 9वां पॉइंट, वो काफ़ी लंबी रैली उनको खेलनी पड़ी थी और एक प्लेयर के लिए ना एक स्ट्रॉन्ग रैली के बाद रिकवरी जो है ना वो थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। और ख़ास तौर पे शिवेन अग्रवाल जैसे खिलाड़ी के सामने ऐसी लंबी रैलीज खेलना और उस रैली को विनर में कन्वर्ट करना, तो वहाँ से थोड़ी रिकवरी वो है ना, वो रिकवरी मिसिंग है अर्नव दत्ता की उस रैली से। बिल्कुल इन बेसिक्स पे काम करना होगा। मुकाबला बहुत बड़ा है सेमीफाइनल का, और ये मुकाबला अब 10-all पे, क्या कहने। स्क्वैश टीम इवेंट्स बॉयज सेमीफाइनल, असम वर्सेस बात करें तमिलनाडु। बहुत खूबसूरत रिटर्न का प्रयास, और फ्रंट कोर्ट में गए, स्ट्रेट वॉल में इस समय पॉइंट लाने की पुश थी। और 11-10 के साथ शिवेन अग्रवाल सर्व करेंगे तमिलनाडु के लिए। क्या खूबसूरत पोस्ट शॉट, क्या लाजवाब नीति, अद्भुत देखने लायक। और ये गेम अपने नाम कर लिया है शिवेन अग्रवाल ने, लेकिन तारीफ करनी होगी आर्यन दत्ता की। आर्यन ने जबरदस्त संघर्ष दिखाया नीति, और अर्नव दत्ता, माफी चाहूंगा, अर्नव काफी कठिन चुनौती, और रिप्लेस में देख सकते हैं फ्रंट वॉल हो, एंगल का अच्छा इस्तेमाल, रिटर्न बहुत अच्छा। पहला सेट 11-5 से जीता था, बात करें यहाँ पे तमिलनाडु के प्लेयर ने, लेकिन दूसरे सेट में अर्नव बहुत खूबसूरत इस समय बैकहैंड रिटर्न हो, अच्छी कोर्ट कवरेज नीति और एंगल्स का खूबसूरत इस्तेमाल। इस गेम में डोमिनेट करने की कोशिश में सफलता ज़रूर मिली थी अर्नव को, लेकिन जो एक्सपीरियंस है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर खेलने का शिवेन अग्रवाल, थोड़ा सा उनको उस चीज़ का फ़ायदा ज़रूर मिला है। शिवेन अग्रवाल स्ट्रगल कर रहे थे सेकंड गेम के दौरान, लेकिन क्या वापसी की उन्होंने और उसके बाद इस गेम को भी जीत लिया है। हम दर्शकों को ये ज़रूर याद दिलाना चाहेंगे कि एशियन जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप 2022 में जो हुई थी, वहाँ पर शिवेन अग्रवाल का बॉयज़ अंडर 13 में वहाँ उनको ब्रॉन्ज मेडल मिला था। तो इसीलिए इनको बार बार जो है फ्यूचर होप माना जा रहा है। स्क्वॉश के कोर्ट से पिछले पूरे सीजन में जो परफॉर्मेंस रहा है शिवेन अग्रवाल का, वो काबिले तारीफ है। बिल्कुल नीति, एक जाना पहचाना नाम है, एक उद्यमान खिलाड़ी शिवेन अग्रवाल। स्क्वैश में जूनियर कैटेगरी में, बॉयज़ में अंडर 13 में भी इन्होंने कई मेडल्स दिलाए हैं अपने स्टेट को, और बहुत एक प्रतिभावान सितारा के तौर पे जाने जाते हैं। जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2022 में विनर के तौर पे रहे थे, और उनका सामना जिस तरीके से हुआ था, वो अपने प्रतिद्वंदी को शिवेन अग्रवाल ने अंडर 13 से ही कितनी अच्छी प्रतिभा दिखाया इन्होंने, और मेडल्स दिलाते रहे हैं। अनहद सिंह हो चाहे अनिका दुबे हो, ऐसे खिलाड़ियों को उन्होंने शुरुआत से ही सामना किया है। एक बड़ी उम्मीद बनते नजर आ रहे हैं तमिलनाडु के लिए। लगातार स्ट्रेट ड्राइव। और आपको बताना चाहूँगा कि खेलो इंडिया इस 6th एडिशन में टोटल 933 मेडल्स दाव पे हैं। 278 गोल्ड, 278 सिल्वर और 377 ब्रॉन्ज, और 26 इवेंट्स टोटल, और स्क्वैश उसमें एक शामिल है पहली बार। और साथ ही साथ इसी बीच नीति खूबसूरत शुरुआत की है शिवेन अग्रवाल ने। देखिए स्पोर्ट्समैनशिप ये होती है, इस स्टेज पर भी इतने यंग एज में भी वो ये बखूबी जानते हैं अर्नव दत्ता ने
शिवेन के शॉट की तारीफ की, अपना बैट रेस करके, अपना रैकेट रेस करके वहां पर उन्होंने शिवेन की तारीफ की है। बस स्पोर्ट्स हमें काफ़ी चीज़ें सिखाता भी है, और इसीलिए हम कह रहे हैं ना कि खेलो इंडिया मिशन का जो मोटिव है वो है कि स्पोर्ट्समैनशिप की ज़रूरत सिर्फ आपको फील्ड पे नहीं चाहिए होती, स्पोर्ट्समैनशिप की ज़रूरत आपको फील्ड के बाहर भी चाहिए होती है। बिल्कुल नीति, एक अभियान है, एक क्रांति है खेलों को बढ़ाने के लिए। भारतीय परिप्रेक्ष्य में भारत खेलों में एक बड़ा एक सेंचुर बने पूरे विश्व में। फिलहाल स्क्वैश स्पर्धा में हम आप तक लाइव हैं। टीम इवेंट्स बॉयज सेमीफाइनल, तमिलनाडु वर्सेस असम। असम के खिलाड़ी रेड जर्सी में है अर्णव, और देख सकते हैं क्या खूबसूरत रैली, रिटर्न बैक हैंड पे कितना खूबसूरत। देखिए, प्लान तो ये शिवेन का था कि उन्होंने बैक वॉल बूस्ट किया था, लेकिन पहले से ही अर्नव जो है काफ़ी फ्रंट वॉल के बिल्कुल नज़दीक थे और ड्रॉप प्लेस करने में कामयाबी उन्होंने हासिल की। शिवेन अग्रवाल इस समय 4 पॉइंट्स के एडवांटेज पे इस तीसरे गेम के दौरान। जी हाँ, सर्व किया था हालांकि अर्णव दत्ता ने, और अपनी सर्विस भी अपने पास रखेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं अब स्कोर बदल रहा है, 4-6। अभी भी शिवेन अग्रवाल जरूर यहाँ पे लीड में है, और एक और पॉइंट शिवेन अग्रवाल को सर्विस पे उनके नाम है। अब तीसरा सेट अगर जीतेंगे नीति तो ये गेम अपने नाम कर लेंगे। 2 सेट से ऑलरेडी आगे हैं जीत करके। काफी डीप बैकहैंड पे था उनके वहाँ, उस कॉर्नर से काफी डीप बैकहैंड पे, उस कॉर्नर से बॉल को रिट्रीव करना या बॉल को रिटर्न करना इतना आसान बिल्कुल नहीं था। देखिए, ये क्लास है इस खिलाड़ी की, असहज कर दिया अपने प्रतिद्वंदी को, रीच से दूर रखा, और 3 जो एरिया है वहां से एक और पॉइंट मिलेगा शिवेन को। बैकहैंड पे ऐसा लगता है कि शिवेन ने जो शॉट खेला ना, जो बाउंस था बॉल में, ये है कि अपने ओपोनेंट पे प्रेशर बनाना और वो दबाव डालने में फिलहाल तमिलनाडु के शिवेन अग्रवाल कामयाब होते नजर आ रहे हैं। नीति, क्या खूबसूरत बोस्ट शॉट था, और एक बार फिर से देखिए रिटर्न से प्रति उत्तर नहीं दे पाए। इतनी दबाव की आपने जिक्र की, वो दर्शाया। आप गेम पॉइंट पे आ गए हैं। शिवेन अग्रवाल तमिलनाडु सर्व कर रहे हैं गेम पॉइंट पे। और इसी के साथ इस तीसरे गेम को जीत लिया है शिवेन अग्रवाल ने। उन्होंने पहले 2 गेम्स अपने नाम किए, उसके बाद तीसरे गेम में फिर से 11-5 यानी काफ़ी डिफरेंस के साथ उन्होंने इस तीसरे गेम को जीता, और पहला मैच जो है अब इस बॉयज़ टीम इवेंट में तमिलनाडु ने जीत लिया है। तो कुल मिलाकर 3 मुकाबले खेले जाने थे, जिसमें से एक आपके सामने हो चुका है। 11-5, 12-10 और 11-5 से शिवेन अग्रवाल ने अर्नव दत्ता को शिकस्त दी। इस बॉयज़ टीम इवेंट में सेमीफाइनल एनकाउंटर यहाँ पे चल रहा है। तमिलनाडु के पास अब 1-0 की एडवांटेज इस मुकाबले के दौरान। शिवेन अग्रवाल पलड़ा पहले से ही भारी था। पिछले पूरे वर्ष अंतर्राष्ट्रीय, न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पीक परफॉर्मेंसेस में नजर आए हैं। पूरे फॉर्म में है शिवेन अग्रवाल। एक यंग होप, एक फ्यूचर है इंडियन स्क्वॉश का। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंडर 13 में मेडल हासिल करना, ये भविष्य बिल्कुल सही डायरेक्शन में नजर आ रहा है इंडियन स्क्वॉश में। युवा खिलाड़ी अनाहत सिंह, अभय सिंह, पूजा, आरती, अरिहंत केएस, इसके अलावा शिवेन अग्रवाल, ये कुछ नाम ऐसे हैं जो राष्ट्रीय आखिरी के जो अपने 3 शॉट्स थे वो ओपोनेंट के डीप बैकहैंड पे ही खेले ताकि उनको परेशानी हो रिटर्न के लिए।
ये दूसरा मुकाबला अरिहंत केएस तमिलनाडु के, उनका सामना होगा सुजिल पाठक से। तमिलनाडु वर्सेस आसाम सेमीफाइनल चल रहा है बॉयज टीम इवेंट में। अरिहंत केएस को कल इंडिविजुअल इवेंट में बॉयज सिंगल्स में जो है सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन आज वो सेमीफाइनल्स में दिख रहे हैं इस समय टीम इवेंट के लिए। और तमिलनाडु के जो कोच हैं उनका मानना है कि टीम इवेंट में तमिलनाडु प्रबल दावेदार है स्वर्ण पदक की। तो थोड़ा सा वार्म अप का टाइम और इस दूसरे गेम की शुरुआत होगी। और मेरे साथ इस समय कमेंट्री बॉक्स में जुड़ चुके हैं अक्षय मौर्य। Thank you, Niti, and what a pleasure to be back in the commentary box after a little break there. But it's such an exciting game that I really don't want to leave it even for a second. But as we all love to watch squash so much, what a beautiful trajectory this game has had in the last couple of decades in India, the way it has grown, and all credit to players like Arihant, Sujil Pathak, Ananya, Chavi, Shamina, Yashi, Deepika, Ritvika Singh Bondela. And, we've been talking about how Tamil Nadu is the epicenter, the hub of squash, but players' participation from states like Rajasthan, from states like, MP, all these are very unconventional squash centers, but over the years, every state has developed its own epicenter, a little bit of hub of squash, and the way this game has become popular all over the country, especially in the middle class, where people used to go for conventionally for hockey or cricket or badminton, the kind of variety, the kind of dynamism squash has given, I think all the young kids in the family, now they have so many other options like the squash. As we are getting ready for this boys team semi-final, game number 2 between Arihant from Tamil Nadu and Sujil Pathak, who will be representing Assam. One has to say that this whole all-around presence, or you can say the visibility of squash from Assam to Rajasthan to Chennai literally covers the entire nation. It tells you the story about the popularity of this beautiful sport that is. I was just having a word with the legendary Cyrus Poncha out there, and he said the game is really picked up in the last 1 decade or so, and what commendable work all of these legends have done. What I like most about all these stalwarts of squash, Niti, that they have so much to give back to the sport. It's not like their career is over and they're done with their accolades. No, they stay in the game, they nurture the young talent, and that is the reason, that is the result that over the years we've had such talents coming in from time to time, be it Saurav Ghoshal, Ritvika Bhattacharya, Mahesh Mangaonkar. So many variation in this talent pool. There you go, the customary toss of the racket has just taken place, and Sujil Pathak probably has chosen the side to court. Yet another exciting day lined up here at Nehru Park, Indian Squash Academy in Chennai. In the earlier times when, early in the day when we were watching this girls semi-final, team semi-final, what a full of entertainment semi-final that we saw. It's the beauty of this game is that even if it is a team event or a singles event, it's equally entertaining. बिल्कुल अक्षय, काफ़ी एक्साइटिंग और एंटरटेनिंग है स्क्वॉश देखना, और जिस तरह से यहाँ पे मुकाबले चल रहे हैं ऐसा लगता है कि भविष्य सचमुच बहुत उज्जवल है खेलो इंडिया यूथ गेम्स। इस प्लेटफॉर्म पे ये यंग स्क्वाड जो है शानदार प्रदर्शन कर रहा है। क्या मुकाबले हमें देखने को मिल रहे हैं, क्या स्ट्रॉन्ग कॉन्टेस्ट जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इससे पहले शिवेन अग्रवाल ने अपना मुकाबला जीता, और शिवेन जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पिछले पूरे सीजन में बेहतरीन परफॉर्मेंस किया है। वहीं अरिहंत केएस जो हैं तमिलनाडु के, उनका भी शानदार प्रदर्शन रहा है पिछले पूरे सीजन में।
और इस समय ये दूसरा मुकाबला है इस सेमीफाइनल मैच का। And now Sujil has already opened his account in the opening game of this semi-final of team event between Tamil Nadu and Assam. Sujil Pathak in blue from Assam and Arihant Chaos in yellow. ब्यूटीफुल ड्रॉप देयर। वहाँ पर वो ऑलरेडी पहले से ही ये प्लान कर चुके थे कि काफ़ी ऑफ पोजीशन है, सुजल काफ़ी पीछे थे और ड्रॉप डालते ही ये एक पॉइंट अरिहंत के लिए। वैरायटी ऑफ शॉट्स उन्होंने वहाँ पर लगाने की कोशिश की है। शुरुआत से ही दबाव बनाना चाहते हैं अरिहंत सुजल पाठक पर। ये एक अनफोर्स्ड एरर है, मतलब इसकी अभी फिलहाल वहाँ पे ज़रूरत नहीं थी। आसाम के सुजल पाठक गलती की। 5-1 का स्कोर। दबाव में है इस समय पूरी तरह से सुजल। The good thing about Arihant is that he's been able to generate those angles, opening the face of the racket very early as he charges onto the front of the court and really doesn't allow Sujal Pathak that much of the moment, because when you're up close to the upper part of the court, Niti, it becomes very difficult to predict and anticipate whether it is going to be a deep return or a soft drop shot around the wall. So that strategy for Arihant has worked so far, and he is comfortably in this opening game at 6-1, is obviously in a very strong position for Tamil Nadu. और अक्षय, जैसे स्क्वॉश में कहते हैं कि कंप्लीटली डोमिनेटिंग द टी, वो जो की है उसको उन्होंने कंप्लीट डोमिनेंस उस पर दिखाया है इन पहले 6 पॉइंट्स के लिए। सेवन टू 5 पॉइंट का डिफरेंस। और सर्विस भी काफी इफेक्टिव, काफी एफिशिएंट सर्विस है उनकी। Obviously, service is a very crucial part, because just to tell our viewers that it has to fall within the line after hitting onto that wall, and the server obviously like to generate just the optimum amount of energy there, because he really doesn't want to allow that enough time mid-air to the opponent where he can actually anticipate and go for a cross court or maybe a forceful burst around the walls. But at the same time, the intention of the server is to bring it on a Yorker length where he can actually find it difficult to return. There you see on that occasion, Arihant trying to generate a burst around the side walls, but on that occasion, wonderfully done by Sujal Pathak as well. And this is all over in no time, as Arihant has wrapped up the game with a comprehensive score of 11-2. Mind you, this is what we've been telling, that Arihant from the very beginning was dominating the game, and he didn't allow Sujal Pathak much of the margin there, especially his constant aggressive charging on the upper part of the court, and he literally dictated the entire rally at will. बिल्कुल उन्होंने कंप्लीट डोमिनेंस दिखाया है और सिर्फ 2 पॉइंट्स वहां पर ऐड कर पाए सुजल। वैरायटी ऑफ स्ट्रोक्स वहां पे, और जिस तरह से कोर्ट कवरेज उनकी थी वो काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिली। और फ्रंट वॉल के जो कॉर्नर्स हैं उनको भी बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज किया है अरिहंत ने। स्ट्रोक्स की प्लानिंग और फिर बेटर एग्जीक्यूशन वो उन्होंने इस पहले गेम के दौरान दिखाया है। 1 साइडेड अफेयर 11-2 के स्कोर के साथ पहला गेम जीता। और इस समय हम चेन्नई के नेहरू स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के स्क्वॉश कोर्ट पर हैं, जहां पर आज दिन है सेमीफाइनल एनकाउंटर्स का। टीम इवेंट जो है चल रहे हैं। आज के दिन की शुरुआत हुई थी विमेंस वहाँ पे गर्ल्स टीम इवेंट के साथ में। तमिलनाडु ने आसाम को हरा, वहाँ पे तमिलनाडु ने जो है राजस्थान को शिकस्त दी और फाइनल में अपनी जगह पक्की की। अब फिलहाल इस समय तमिलनाडु जो है आसाम का सामना कर रहे हैं बॉयज टीम इवेंट में।
Arihant, we saw on our TV screens a little while ago, he was having a bit of a stretching with the roller under his hamstring and quadricep. We all know that how exhaustively, excruciatingly forceful it is for our lower body squash. And obviously, if there's a bit of a cramp or a stiffness in his thighs, he would like to immediately take care of that. The crowd, on the contrary, Niti, has been very fascinating, especially very different temperament of the crowd here in Chennai, dressed in their traditional jewelries there as we go underway in game number 2. And Arihant on that occasion just couldn't reach out to the return from the ball, and that allows Sujil Pathak to open this account in this game number 2. There you see, but brilliantly done by Arihant, Sujil Pathak on that occasion. Beautiful drop on the side of the wall there. Just controlling the pace from deep of the court. That is a very difficult shot to play from so far, such a distance. And that tells you about the brilliance of this exceptional athlete from Assam, Sujil Pathak. शुरुआत अच्छी, लेकिन थोड़ी सी और कंसिस्टेंसी दिखानी होगी क्योंकि आप पहला गेम गवा चुके हैं. बैक वॉल बूस्ट दोनों ने लगातार ड्रॉप शॉट्स खेले हैं. Nicely done there by backhand drive. Beautiful backhand drive from Sujil Pathak there. And he's looking a much better player after having lost the opening game. Sujil is trying to control the rallies here, try to reach out. A little bit of a better anticipation has also helped him in this game number 2, even though Arihant has upped his tally by 1 point, is still leading there. But yes, Sujil is looking a player who's got a better chance at someone like Arihant in this game. वो एंटिसिपेशन, क्योंकि देखिए ये एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी है अरिहंत की कि उन्होंने बॉल को ऐसी जगह ऐसे एंगल पे हिट किया है कि वहां से बॉल ज्यादा बाउंस ही नहीं हुआ. एक स्लो शॉट खेलने की कोशिश, लेकिन उसके बावजूद क्या कंफर्टेबल कोर्ट कवरेज है. अपनी स्ट्रॉन्ग रीच के साथ में अरिहंत का वहां पे समय पे पहुंचना और पोजीशन पर है. अगर आप उनके मूवमेंट्स देखें तो काफ़ी एजाइल है ये खिलाड़ी. उनकी जो कोर्ट कवरेज है वो काफ़ी ज़बरदस्त है. The most beautiful feature of Arihant's game is that his ability to come back to the center. He is literally dominating the tee, and we have seen it how often, Niti, that a person who dominates the tee, he literally dominates the game, and hence the match here. And even though scores are neck to neck at 4-4, but Arihant has looked a player who is never out of the game, even if he's a couple of points behind Sujil Pathak here. Is looking a lot more confident now with 1 point's lead. There you go, another soft drop here. Beautifully controlling the pace and the angle to the side wall also was very close. That even if Sujil had tried to charge onto it, he wouldn't have any chance at it. This is what I was talking about, that Sujil has rather remained standard at 1 point. His movement, his agility is not at par with Arihant at all. And look how beautifully Arihant has moved on the left to right side of the court and also using the depth of the court beautifully there. ये प्लान अच्छा था, लेकिन ऑब्वियसली हर प्लान में आपको जो है फ़ायदा नहीं मिलता है. बस कुछ वैसा ही अनफोर्स एरर्स में कन्वर्ट हो गया वो उनका प्लान. वो साइड वॉल्स के साथ बूस्ट करना चाहते थे. वहां पर ये सुनहरा, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी उनके लिए.
ये पॉइंट तो वो किसी कॉस्ट पर नहीं छोड़ते, इतना ओपन था उनके लिए ये पॉइंट लेना। 9-4। शुरुआत अच्छी थी सुजल पाठक की, लेकिन उस जो शुरुआत में जो उन्होंने किया उसको मेंटेन नहीं कर पाए, और इसीलिए हमने शुरुआत में ही जिक्र किया था कि कंसिस्टेंसी उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी कि अगर आप लीड हासिल करें तो उस लीड को मेंटेन जरूर करें। A rare mistake on that occasion from Arihant, hitting that backhand straight into the tin. Very rarely we see him make that mistakes because his reach is so good. There you see, lunging backwards into the depth of the courts and creating right that angle in the center of the ball. What a beautiful player he is, and he wraps up in no time at 11-5. He wins game number 2 as well. Comprehensive victory in game number 2 as well for Arihant KS, and Tamil Nadu, not only in the girls section but also in the boys section, has come out all guns blazing, Niti, and all credit goes to talents like Shamina and Arihant KS, and especially in game number 2, even though he was challenged partially by Sujil Pathak, but there you see in the highlights of this game. और इस गेम में शुरुआत अच्छी हुई, लेकिन उस शुरुआत को बरकरार नहीं रख पाए, और ये गेम भी गंवाना पड़ा है सुजल पाठक को। अरिहंत इस सीजन में अपने बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ एंटर कर रहे हैं, और अभी जनवरी के फर्स्ट वीक में ही लिटिल मास्टर्स और सीनियर टूर्नामेंट हुआ था, जहां पे वो क्वार्टर फाइनल्स तक पहुंचे थे। एक अपसेट उन्होंने वहां पर किया था उस चैंपियनशिप के दौरान। उन्होंने राहुल बैठा को, एक सीनियर प्लेयर को जो है वहां पर हराया था और क्वार्टर फाइनल्स में पहुंचे। उसके बाद वो सेमीफाइनल्स में भी जब उन्होंने अपनी जगह पक्की की तो वहां पे वो रिटायर्ड हर्ट उन्होंने ले लिया था उस मुकाबले के दौरान। और जनवरी में ही उन्होंने ब्रिटिश जूनियर अंडर 19 ओपन भी खेला इंग्लैंड जाके, जहां पे वो दूसरे दौर तक पहुंचे। तो इस सीजन, और अभी तो जनवरी ही चल रहा है, और देखिए इसी सीजन मतलब इसी महीने में वो अपनी तीसरी चैंपियनशिप खेल रहे हैं, तो फॉर्म में है पूरे। और पिछले वर्ष की भी जो उन्होंने एंडिंग की थी वो भी भारत में जो PSA टूर हुआ था, क्वार्टर फाइनल्स तक पहुंचे थे, वहां पर भी उन्होंने अपने से बेहतर खिलाड़ी को सुनील वर्मा मेमोरियल ओपन में उन्होंने अपने से बेहतर सीडेड खिलाड़ी को शिकस्त दी थी। As we begin game number 3 here with a 2 games advantage for Arihant KS from Tamil Nadu. He is brimming with confidence, and I'm sure as he opens his account here, Sujil Pathak would like to keep the advantage with him as long as possible, because in this game it's almost like a do-or-die situation for Sujil Pathak. Beautiful drop there, backhand there, and charging onto the front of the court. This is what he needs to do more often, Sujil Pathak, if he really wants to keep his chances alive in this match here against Arihant. But Arihant is never, ever out of the game with that opening his account with 1-2. Lovely backhand drive there along the wall. And in no time, he's leveled the score. This is what I'm telling, that this man never looks out of the match. He's looking so confident or so relaxed. Whereas on the contrary, Sujil has to put in a lot of effort even to win that within 1 point. Oh, look at that strong, aggressive backhand. Was literally waiting for that and compelled Sujil to make that mistake, hitting that one into the tin. अक्षय, कल जब इंडिविजुअल बॉयज सिंगल्स वहां पे हुआ था सेमीफाइनल, तो अरिहंत को हार का सामना करना पड़ा था। आर्यन प्रताप सिंह के हाथों उनको कल शिकस्त मिली, लेकिन उन्होंने कल 4 गेम्स खेले थे और आर्यन प्रताप सिंह उनसे बेहतर सीडेड यानी सेकंड सीड प्लेयर थे। आज इस टीम इवेंट में कंप्लीटली डोमिनेट करते हुए नजर आ रहे हैं अरिहंत इस मुकाबले में। 2 गेम के बाद इस तीसरे गेम में भी एडवांटेज पर। थोड़े नाखुश है अपने इस शॉट को लेके। व्हाट अ शॉट! फ्रंट वॉल के इतने नजदीक से इतना स्पीड शॉट खेला है कि उसके बाद चांस नहीं है ओपोनेंट के पास उसको रिट्रीव या रिटर्न करने का।
Absolutely, Niti. I totally agree. And the beauty of the shot was that in spite of the fact that Sujil was in position to reach there, but the speed and the angle was so sharp that Sujil was mere spectator there. 6-3 with a strong lead in this game number 3. Arihant will be looking to seal this match very soon now in straight sets. सेम थिंग, पहले उन्होंने ये चीज़ राइट एंगल पे ट्राई की, अब उन्होंने लेफ्ट एंगल पे ट्राई की है। और अक्षय, दिस व्हाट इज़ अबाउट स्पीड से कहीं ज़्यादा वेलोसिटी पे, कि आपको अपनी स्पीड को डायरेक्शन देनी है, और वो दिशा जो है वो देने में कामयाब हो रहे हैं अरिहंत के एस इस समय, इस तीसरे गेम के दौरान भी। Niti, I really love the fact when you bring on those specific physics terms. I believe you've been an engineer and such a delight to commentate with you in this box. You know, it's always nice to hear the specific terms about the speed and velocity. A lot of people who understand the difference, and it's a different music to ears altogether. Yes, that's right. On that occasion, Arihant was able to generate that kind of velocity and give it the right direction to that volley. And as I've been saying, he's literally been the architect of the entire match and this rally as well. And there you see, in no time, Arihant has wrapped up this game between Tamil Nadu and Assam in straight sets, in straight games. And literally, Sujal Pathak had no chance whatsoever throughout in this game, winning comfortably in straight games. Arihant KS for Tamil Nadu in both the sections, in both the semi-final of these team events. Tamil Nadu's dominance has been quite evident, and why not? They are such a epicenter, such a hub of squash, and so good to see these brilliant athletes like Shamina, Arihant KS, Deepika V, Shamina Riaz, Ananya Narayan, doing so well for Tamil Nadu, and I believe that Tamil Nadu also tops the medal tally as far as squash is concerned in the entire of all the teams that are participating. Already, I think 6 gold medals in their kitty, Niti. बिल्कुल, तमिलनाडु ऑलरेडी लीड कर रहा है इस समय मेडल्स टैली को। ये कुछ हाइलाइट्स हैं अभी समाप्त हुए मुकाबले के। अरिहंत केस जो जीत हासिल करने में कामयाब हुए हैं, उन्होंने सुजिल पाठक को जो है स्ट्रेट गेम्स में शिकस्त दी है, 3-0 से हराया है। पहला गेम 11-2 से जीता, दूसरा 11-5 और आखिरी गेम 11-4 से जीतकर उन्होंने तमिलनाडु टीम को 2-0 की बढ़त दिला दी है। और अब यहाँ पर ये मुकाबला तो जीत गई है तमिलनाडु टीम, और वो अब फाइनल्स में नज़र आएंगे। लेकिन तीसरा गेम भी हमें देखने को मिलेगा, तीसरा मुकाबला भी हमें देखने को मिलेगा। मयप्पन और आकाश पाठक आमने सामने होंगे। आसाम वर्सेस तमिलनाडु। मयप्पन को जो है इंडिविजुअल इवेंट में जो है हार का सामना करना पड़ा है, जबकि वो एक सीडेड प्लेयर थे, लेकिन टीम इवेंट में अब उनके पास मौका है आसाम के आकाश पाठक के खिलाफ खेलने का। ये सेमीफाइनल एनकाउंटर, कल का दिन जो था वहाँ पर सेमीफाइनल्स ही खेले गए, लेकिन सिंगल्स के सेमीफाइनल यानी इंडिविजुअल इवेंट के सेमीफाइनल्स से, और आज जो है टीम के सेमीफाइनल्स चल रहे हैं, टीम इवेंट का सेमीफाइनल चल रहा है। तमिलनाडु दोनों ही कैटेगरी में जो है उन्होंने फाइनल में स्पॉट पक्का कर लिया है, बर्थ बुक कर लिया है, और अब कह सकते हैं कि ये जो मुकाबला है मयप्पम और आकाश पाठक के बीच में, वो एक औपचारिकता के लिए है। और अक्षय, खेलो इंडिया यूथ गेम्स है, कभी कभार खिलाड़ी जो है ये भी तय करते हैं ऐसे स्टेज पे कि वो ना खेले, लेकिन क्योंकि खेलो इंडिया यूथ गेम्स आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो इस अपॉर्चुनिटी को वो यूज़ करना ही चाहते हैं, वो यूटिलाइज करना चाहते हैं, और सभी खिलाड़ी चाहेंगे कि वो अगर उनको गेम खेलने का मौका मिल रहा है तो वो खेले। Absolutely, Niti. And unless and until there is a danger of any sustaining injury or something that he is not willing to have a good match, in spite of the fact that the team has already made its place in the finals. But every athlete would like to have
good match practice at such a high level, and he's being watched by the millions of Doordarshan viewers all around the globe and representing your state as well as no matter what your position is, but also being watched is one of the biggest perks of being a player, that you are almost like a celebrity status, that one of the fascinations, one of the motivations of when we early in our formative years when we pick up a sport. I remember हम और आप दोनों ही जब players थे उस आप अपने individual event में, and I used to be a judoka. One of the biggest fascinations, one of the biggest perks of being a player was that that medal ceremony in our school days, Niti, and we used to be such a, you felt like a star or a celebrity during those school assemblies, and obviously even if we are not doing that well in our studies, but that could kind of more than compensate for our bad academic records, because those medals would really bring all the focus and attention on us. So obviously, you know, playing at such a level in the 6th Khelo India edition, we have been telling our viewers that it is the first time squash has been added, and so it's a great motivation for these players to play these even the most औपचारिक of the match, even if it is not that significant. और साथ ही साथ तमिलनाडु के लिए देखिए अपने घर पर खेल रहे हैं, और हम बार बार कह रहे हैं कि स्क्वाश जो है, स्क्वाश का हब है तमिलनाडु, तो अपने घर पर वो टीम टाइटल तो लेना ही चाहेंगे। कोच से हमारी बात हुई, उन्होंने भी जिक्र किया, वहाँ पर उन्होंने ये कहा है, गिव द बिग वर्ड्स कि हम टाइटल होल्डर होंगे 100% इस 6.0 एडिशन में, और जिस तरह से टीम इवेंट में नतीजे आएंगे और जो नतीजे आ रहे हैं वो उसी दिशा में जा रहे हैं कि तमिलनाडु जो है प्रबल दावेदार माना जा रहा है स्वर्ण पदक के लिए। और अपने घर पर अगर आपके स्क्वाश जैसे इवेंट को होस्ट किया जा रहा है तो क्यों नहीं चाहेगा तमिलनाडु कि इस इवेंट में जो है स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया जाए। वो मौका उनके सामने है और उस मौके को वो भुनाना ही चाहते होंगे। स्क्वाश कोर्ट इस समय चेन्नई में नेहरू स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हम, और टीम इवेंट बॉयज का सेमीफाइनल। पहला पॉइंट मयप्पम के लिए। क्षमा कीजिए, वहां पे जो पहला पॉइंट था वो आकाश पाठक ने अपने नाम किया, तो एक अच्छी ओपनिंग वहां पर मिली है आसाम टीम को, और अब बराबरी पर है इस समय मयप्पम और आकाश पाठक। मुकाबले की शुरुआत, पहला गेम इस समय प्रगति पर। Oh, beautiful nick there. Charging onto the front of the court, Mayapan. He saw that he is standing literally parallel to him, and obviously he went for that nick and created a brilliant winner. Mayapan with a 3-1 lead in this opening game of a rather formality of a match between Tamil Nadu and Assam, since Tamil Nadu has already secured its place in the finals, and obviously it's a good match practice for the team, because if Mayapan can have a good match practice, open up his arms and get his form back, he will be a good asset in the finals also, because you never know if he didn't get a chance to play here, and if he were to play straight away in the finals, would be a little rusty here. And with that 4-1, 5-1 lead, Mayapan is not only having a good match practice here, but he's getting his form back as well. And as we talk about the form getting back in the commentary box is my dear friend Vikas joining me. Vikas, welcome back to the commentary box. And we missed you because there was some exciting action, especially between Arihant and Sujil Pathak, in which Arihant was comprehensively dominating that game against the Assam team. थैंक यू सो मच और बहुत बहुत धन्यवाद अक्षय। बिल्कुल सही कहा आपने, यकीनन तौर पे बहुत खूबसूरत ये स्क्वैश का स्पर्धा, और ये टीम इवेंट बॉयज सेमीफाइनल का ये तीसरा मुकाबला है। 2-0 से पहले ही अपनी आगे दावेदारी सुनिश्चित कर चुकी है फाइनल में असम के खिलाफ। अभी तक देखें तमिलनाडु का प्रदर्शन बहुत लाजवाब। खूबसूरत रैली फ्रंट वॉल से टकराई एंगल में, बेहतर रिटर्न
और यहाँ पे एक और पॉइंट मिला मयप्पन एल, जिन्होंने अपने लीग चरण के दौरान देशांत राजस्थान के खिलाड़ी को हराया था। इन्होंने 10-12, 11-5, 8-11, 11-2 और 13-11 यानी 5 सेटों तक चला था मुकाबला। बहुत अनुभवी खिलाड़ी हैं ये, भले उम्र कम है लेकिन प्रतिभा कमाल की इस खिलाड़ी के अंदर। अक्षय 8-2 की स्कोर लाइन ये बता रही है कि डोमिनेट कर रहे हैं। It's good that Akash is charging on the front of the court and taking its chances, also coming back quickly to the back. But with that 9-2 score, now with Mayapan only a couple of points away from sealing this opening game between these two athletes from Tamil Nadu and Assam. That little bit of urgency that Akash Pathak had showed was rather late in the day as far as this game is concerned, because if he had taken his chances early in the beginning, after he had opened his account, he would have been much better off. But now at 10-3 with the 7 ball points, Mayapan will be stealing this game, and it does that in no time. 11-3. Mayapan, beautifully done there by Mayapan for Tamil Nadu, and giving himself a good match practice out there as the two players go out for a little bit of break. Mayapan leads this match by 1 game to love. बिल्कुल, मयप्पन ने बहुत अच्छी शुरुआत की है, पहला सेट अपने नाम किया। देख सकते हैं आप हाइलाइट्स में अच्छी रीच का इस्तेमाल किया और खूबसूरती से इस मैच में कोर्ट कवरेज कमाल का, रिटर्न काफ़ी अच्छा, और सबसे अहम बात प्रतिद्वंदी के लिए मुश्किलें पैदा की। स्ट्रॉन्ग जोन में खेल रहे हैं अपने, चाहे उनके ड्रॉप शॉट हो, चाहे ड्राइव हो, फ्रंट कोर्ट का अच्छा यूज करते हुए, और काफ़ी एक्टिव नज़र आए कोर्ट के इससे पहले सेट में, जिस तरीके से मानो मानसिक तौर पे तैयार थे, और अच्छे रिटर्न्स देखने को मिले। पहला सेट मयप्पन ने अपने नाम किया है 11-3 से। और मयप्पन के बारे में जहाँ तक जिक्र है, मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, तुतुगिरी एक जगह है तमिलनाडु की, वहाँ से, और इंडिया में वर्तमान इनकी 9th रैंकिंग है जूनियर में। 9th रैंकिंग इंडिया की एक बहुत प्रतिभावान खिलाड़ी मयप्पन एल इस समय तमिलनाडु के लिए अपने अब दूसरे सेट में अपनी प्रतिभा दिखाएंगे। लेकिन आप जुड़े रहिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स के इस 6ठे संस्करण में डीडी स्पोर्ट्स के साथ, क्योंकि आने वाले मुकाबले बहुत दिलचस्प रहने वाले हैं। सेमीफाइनल बॉयज कैटेगरी का ये टीम इवेंट है, और अक्षय कितनी बड़ी बात है कि जहां तमिलनाडु का डोमिनेशन रहता है, वहीं असम जैसी टीम सेमीफाइनल्स खेल रही, खेलो इंडिया की क्रांति को दर्शाता है। पूरे भारत में खेलों की एक बड़ी संस्कृति विकसित हो रही है। I must say that the way Khelo India has tapped the potential of Indian sporting youth, it has never been done before. And I, during my playing years, I always felt it, Vikas, that we need to go to the grassroots level, to every nook and corner of the country, bring out the talent, be it from the northeast, be it from the Jammu and Kashmir, be it from the coastal states or the central India. And now with Khelo India movement, you know, we just did the Khelo India Para Games in Delhi. Before that, we were in the national games in Goa. And now, as the 6th edition is being hosted by Tamil Nadu, and seeing these 5,000 plus athletes having their participation at this in 23 odd some events, what a delight to watch these young athletes being nurtured so early in the career. And even though somebody like Akash Pathak representing Assam is lagging behind a couple of points, maybe he has lost a game or two, but the kind of platform that has Khelo India given to these young athletes, it's already they are at a celebrity status. So that is a great boost, a great morale boost for any young athlete so early in his career. वाकई में कि बहुत ज़बरदस्त ये शुरुआत है, खेल को तराशने की एक क्रांति है, ये अभियान है। और सबसे अच्छी बात इस एज ग्रुप में जो सबसे सीखने की होती है, ग्रास रूट लेवल पे भारत के कोने कोने से प्लेयर्स निकल रहे हैं, और खेलो इंडिया एक सक्सेसफुल अपने एक पड़ाव की तरफ, एक सफल अभियान की तरफ फिलहाल मैच पे नज़र डालें। एक और पॉइंट मिला है इस वक्त
आकाश पाठक की भी तारीफ करनी होगी। मयप्पन एल 5-3 के साथ सर्व किए उन्होंने, फ्रंट वॉल से टकराकर साइड वॉल में डिफ्लेक्ट हुई बॉल, लेकिन ये प्रशंसनीय बात, आकाश पाठक को पॉइंट मिला और सर्व करेंगे आकाश ब्लू जर्सी में। Nice strong backhand drive from Akash and immediately coming back to tee. Now his court coverage is looking much better. He's not allowing Mayapan to dictate the terms. Look at that, beautifully dropping that just above the edge of the tin there, challenging Mayapan. And unfortunately for Pathak there, it was just touching an inch or millimeter or two at the tin. Unfortunately for him, but it was a very good shot. Nice soft hand. Good touch from Akash Pathak, even though the point was won by Mayapan as he leads this game number 2 with 7-4. क्या जबरदस्त इस समय फोर हैंड पे पुश था, वो देखने लायक फ्रंट वॉल में, और इतनी शांतचित होकर अपने लक्ष्य को साधना, ये बड़ी बात है अक्षय, और ये प्रतिभाओं के अंदर नजर आती हुई। फिलहाल अच्छा रिटर्न, और यहाँ से एक और पॉइंट मिलेगा। मयप्पन एल अब 8-4 के साथ सर्व कर रहे हैं येलो जर्सी में, तमिलनाडु का ये प्लेयर। खूबसूरत रैली, अच्छा किल शॉट, बोस्ट का भी अच्छा इस्तेमाल किया खूबसूरती से, रीच का काफी बैककोट गए, और 9-4 के साथ लीड कर रहे हैं मयप्पन एल। जूनियर में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा स्क्वैश में इनका, जूनियर और सब जूनियर की उससे परिपाटी से निकले हैं। खेलो इंडिया के इस खूबसूरत मंच पे फिलहाल एक पॉइंट मिलेगा आकाश पाठक को। आसाम के लिए अच्छे संकेत है, हल्की सी वापसी करेंगे क्या यहाँ से? आकाश सर्व कर रहे हैं। और अब यहाँ से गेम पॉइंट पे सर्व करते हुए मयप्पन एल। बेहतरीन रैली, कमाल की रैली, ये तारीफ करनी होगी। आकाश पाठक को पॉइंट मिला है, अपने प्रतिद्वंदी की रीच से दूर रखा, रिटर्न अच्छा आया था, लेकिन पिछले 2 पॉइंट्स आकाश ने अर्जित किए हैं। और इस बीच यहाँ पे मयप्पन को गलती करने पे विवश किया। एक और पॉइंट आकाश पाठक के नाम। स्क्वैश टीम इवेंट का ये सेमीफाइनल, आसाम और तमिलनाडु आमने सामने, ये सेट अपने नाम कर लिया है मयप्पन एल ने। शुरुआती 2 सेट अपने नाम किए हैं मयप्पन ने, पहला सेट 11-3 से, और ये सेट अपने नाम किया है 11-7 के अंतर से। ज़बरदस्त मुकाबला देख सकते हैं। पहला सेट मयप्पन एल 11-3 से, दूसरा 11-7 से। स्क्वैश टीम बॉयज इवेंट का ये सेमीफाइनल, मयप्पन का अभी तक बेहतरीन प्रदर्शन और तमिलनाडु का डोमिनेशन देख सकते हैं हाइलाइट्स में। और कमाल का बैकहैंड रिटर्न हो, फोरहैंड पे हो, अच्छी कोर्ट कवरेज हो, ड्राइव हो, ड्रॉप हो, किल शॉट हो, लॉब हो, रीड्रॉप हो, रिटर्न काफ़ी बेहतर आगे आए फ्रंट कोर्ट में। और एक खूबसूरत ये स्क्वैश की ये नुमाइंदगी आप तक पहुंच रही डीडी स्पोर्ट्स पे। और ये मुकाबला 11-7 से दूसरा सेट अपने नाम किया था। हाइलाइट्स में देख सकते हैं बैककोर्ट का अच्छा इस्तेमाल किया, रीच का काफ़ी खूबसूरत, प्लेसमेंट एंगल्स का काफ़ी अच्छा, और अपने प्रतिद्वंदी को कैसे परास्त करना है इसकी तमाम योजना बनाई जाती है, और बेहतर योजना को साकार किया है। फ्यूचर इज़ हियर, इस टैगलाइन के साथ खेलो इंडिया यूथ गेम्स के इस 6ठे संस्करण में ये कारवां आगे बढ़ता हुआ। तमिलनाडु बॉयज़ टीम इवेंट्स में पूरी तरीके से डोमिनेशन है। और आपको बताना चाहूँगा जो खिलाड़ी मयप्पन इस समय तमिलनाडु की तरफ से खेल रहे हैं, पहले सेट में 11-3, दूसरे सेट में 11-7 से 2 सेट अपने नाम किए हैं इस सेमीफाइनल के। मयप्पन के बारे में जहाँ तक ताल्लुक़ है, ये खिलाड़ी तूतुगिरी के रहने वाले हैं। इंडिया के जूनियर में 9th रैंकिंग है इनकी, और मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं ये। तो
काफ़ी कुछ उम्मीदें, आशाएं इनसे रहेगी आने वाले वक्त में भी। भारत को मेडल दिलाने की ऐसे जूनियर पौध तैयार हो रही है। स्क्वैश भारत के लिए एक बहुत ही उम्मीदों भरा, अगर बात करें, खेल रहा है और इस परिपाटी को और समृद्ध करती है। अगर बात करें, चाहे दीपिका पल्लिकल हो, चाहे ज्योत्सना चिनप्पा हो, या सौरभ सौरभ घोषाल जैसा प्लेयर, इस परिपाटी को और समृद्ध करते हैं। और स्क्वैश रैकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया की जो स्क्वैश एकेडमी है, इसी तमिलनाडु के उसी खूबसूरत एरिना से हम नेहरू पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स लाइव है और बड़ी संभावनाएं नज़र आई है। अक्षय देखें, बड़ी प्रतिभा इन खिलाड़ियों में, वर्ल्ड क्लास इन्होंने खेल दिखाए हैं। बड़ी उम्मीदें मुझे नज़र आ रही है स्क्वैश से आने वाले वक्त में भारत के लिए। Absolutely, Vikas, and especially now with that inclusion in the Olympics, which we will be seeing it in 2028 at the US Olympics, it will be even more interesting because the medal tally, India will be placing even higher. The kind of potential, I am sure by now, by then, all these youth players from the Khelo India section would have graduated onto international global superstars. It will be very satisfying to see these athletes to grow, and you know, it's a great feeling to see young talents being nurtured and you being part of their evolution, you being an eyewitness to such an evolutionary process of these athletes. You always feel a part of their journey, and there's nothing more satisfying than seeing an athlete doing well whom you have seen from the very early formative years of his or her life. As we see these two young talented athletes, Mayapan L from Tamil Nadu, who is up against Akash Pathak, representing Assam. They will be taking the court very soon. There's a bit of a discussion going on, probably if they want to continue or not, because it's a bit of a formality, and they're only going to exhaust themselves. And tomorrow they will be going for their team events final. So they would like to conserve their energy as much as possible. And looks like they have decided probably to wrap it up. And this is it. They have wrapped up the third game with 2 games only instead of going for the best of 3, which is the general practice. But both in the boys section and in the girls section, in the team semi-final, Tamil Nadu has safely secured its place for the final. And what a satisfactory day Tamil Nadus have had after those couple of initial losses yesterday in the individual section, especially when Shamina Riaz was playing against the Maharashtrian athlete Anupama Dubey. And obviously having lost in individual category always hurts a lot. But now taking one for the team, because Shamina Riaz and Ananya Narayan and Deepika V for Tamil Nadu, they have secured their place for their team's place at the final. And now in the boys section also, Tamil Nadu safely placed for the finals. बिल्कुल अक्षय, बॉयज सेक्शन में भी अगर बात करें शिवेंद्र अग्रवाल की, अरिहंत केस की और मैयप्पन एल, यानी कि दोनों ही वर्गों में बहुत ही स्वर्णिम प्रदर्शन, और फाइनल में टीम इवेंट्स के स्क्वैश में अपनी दावेदारी तमिलनाडु ने सुनिश्चित कर ली है। आप डीडी स्पोर्ट्स पे ऐसे ही जुड़े रहिए और आपको बताना चाहूँगा कि स्क्वैश में भारत का प्रदर्शन बहुत लाजवाब रहा है। वर्ल्ड डबल्स चैंपियनशिप में अभी तक भारत के लिए 7 मेडल, कॉमनवेल्थ गेम्स में अभी तक इतिहास में स्क्वैश से 5 मेडल भारत के लिए आए हैं। एशियन गेम्स में स्क्वैश से 18 मेडल, एशियन टीम चैंपियनशिप में भारत ने 20 और एशियन इंडिविजुअल चैंपियनशिप में 6 मेडल, यानी कि टोटल 51 मेडल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत को स्क्वैश से मिले हैं। और एक उदीयमान प्रतिभाएं निकल रही है इसी स्क्वैश के इस खूबसूरत स्पर्धा से। फिलहाल मैयप्पन एल के स्कोर देखें, जिन्होंने 2 सेटों में, पहले सेट 11-3 से और दूसरा 11-7 से आकाश पाठक को शिकस्त दी। और ये बताते हुए कि यहाँ पे कि बॉयज़ और गर्ल्स दोनों कैटेगरी में तमिलनाडु की टीम ने स्क्वैश के सेमीफाइनल में अपनी फाइनल के लिए क्वालिफाई कर ली है। और बने रहिए आप हमारे साथ। आपको बताना चाहूँगा कि स्क्वैश, हम वापस जल्द ही आएंगे स्क्वैश के इवेंट लेकर के,
तो आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ डीडी स्पोर्ट्स के इस खूबसूरत प्रसारण पे। स्क्वैश का प्रसारण लगातार जारी रहेगा। एक छोटे से बात करें ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे आप तक प्रसारण लेकर के। गाड़ी है कि नहीं? नीति, नीति मैडम, नीति मैम, चले होटल? हाँ जी, क्या वाइंड अप हो? हाँ जी, ये खत्म हो गया बस।